No, ma'am. No, ma'am. Okay. Now read the question number 13 fast. Ma'am, we have to write the question. No, beta, you need to write down only answers. Okay? मैम टेक्स्ट बुक में लिखना है. नहीं बेटा, इन नोटबुक, बिकॉज सेकेंड टाइम अगर रिवाइज करोगे तो अंदर आंसर्स लिखे हुए होंगे, क्या पता चलेगा कि आ रहा है कि नहीं, है ना? चलो, फर्स्ट 13, if two angles are complementary, what is the meaning of complementary angles? Sum of two Ma'am, angles is angle 90 degree. Angle which give 90 90 degree. degree, ma'am. 90 beta. Complementary, that means 90, and supplementary, that means 180. So 180. first answer क्या आएगा? It's 90 degree. 90. Now second one, if two angles are supplementary, then sum it's 180 degree. 180 degree, ma'am. Now third one, two angles forming a linear pair. Linear pair यानी addition कितना होता है? 180. 180 है? 180. तो हाँ, तो linear pair को हमने और कुछ नाम दे सकते हैं? Supplementary angle. Supplementary angle. एक सेकेंड रुको, मैं क्या बता रही हूँ. अगर ऐसा लिखा है टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर 180 नहीं बोल सकते, क्योंकि उसको अगर लिखा होगा कि सम इज दिस तो 180 लिखेंगे. सो माय आंसर इज सप्लीमेंट्री. Supplementary angle. ठीक है. नाउ फोर्थ वन, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. मैम linear pair. सप्लीमेंट्री यानी अगर ये दोनों सप्लीमेंट्री है, एडिशन 180, सो अनदर नेम इज लीनियर पेयर. म्यूट एवरीवन, किसी का माइक से बहुत आवाज आ रही है. फिफ्थ, if two lines intersect at a point, ऐसे two lines intersect at a point, Hello madam. vertically angles are always, yes. Ma'am, can you please tell me what you are studying, because I entered in the Yes, class. madam. Just I have started question number 30 and we solved only 4 pillars. Okay. Okay, ma'am. Thank you. Ma'am, can we do it in Yes. textbook? No, beta, in notebook. Never use textbook. Next one is, if two lines intersect at a point, then the vertically opposite angles are always. और सिखाया था मैंने, क्या होता है vertically opposite angles? Equal. चलो sixth one, if two lines intersect at a point, if one pair of vertically opposite angles are acute angles. कौन है? Too much noise. मैम इसका आंसर ऑब्ट्यूज आएगा मैम. देखो, मैंने तो सिखाया था, if two lines intersect at a point and if one pair of vertically opposite angles are acute, ऐसा सिखाया था ना आपको, जैसा ऐसा बना रही, if one pair is acute तो second pair always obtuse. ठीक है. अगर इससे उल्टा पूछते, if one pair is obtuse then another pair is Acute. okay. इजी, कोई डाउट है किसी को फिलअप में? No, ma'am. No, ma'am. Okay. चलो आंसर्स लिख लिए तो 14 स्टार्ट करते हैं. लिख लिए मैम. ओके, चलो नेक्स्ट. लिख लिया, ma'am. ओके 14. In the adjoining figure, name the following pairs of angles. First diagram बना देते हैं. Ma'am, we have to draw. Yes, बेटा. Ma'am, we have to draw right in. Yes. Draw and write in notebook. ये सबसे पहला स्टेटमेंट ये लिखना पड़ेगा ऑलवेज. Now, first is obtuse
vertically opposite. सबने ड्रॉ कर लिया? Yes, ma'am. No, ma'am, 1 minute. Wait. Yes, ma'am. Wait 1 minute. No, ma'am, wait. Ma'am, done. हाँ बेटा, बार बार नहीं बोलना। चलो नाउ सबसे पहले मुझे फाइंड करना है which two lines intersect at a common point। दिख रहा है सबको? कौन कौन सी दो लाइंस है जो intersect at a common point है? One is AC, another is BD। दिख रहा है ऐसे सबको? Yes, ma'am. AC and BD। क्यों मैं ऐसा फाइंड कर रही हूँ? क्या पूछा है? देखो फर्स्ट क्वेश्चन में कि ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। जब भी अपने को वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स फाइंड करने होते हैं ना, तो ऑलवेज मुझे ऐसा फाइंड करना है कि कौन सी दोनों लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट है। तो इसमें आपको ऑब्ट्यूज कौन सा दिख रहा है? ये दोनों ऑब्ट्यूज दिख रहा है ना? Yes, ma'am. ऑब्ट्यूज दैट मींस ग्रेटर देन 90। तो कौन सी पैर हो गई? AOD and BOC। एनीवन एनी डाउट? No, ma'am. ओके अगर इसमें सेम क्वेश्चन में ऐसे पूछते एटीट्यूड कौन से एंगल्स लिखते हैं? AOB एंड COD। ठीक है? मैम 2 मिनट रखना मैम। हाँ रख रहे हो। मैंने क्यों अलग से डायग्राम बनाया? क्योंकि यहाँ पे ये लाइन होगी ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले मुझे फाइंड करना है वर्टिकली ऑपोजिट में कौन सी दो लाइंस है। ठीक है? मैम ये फर्स्ट वाले का आंसर है ना? हाँ फर्स्ट देखो बेटा, यहाँ लिखा है ना मैंने फर्स्ट। यस मैम। ओके क्वेश्चन भी लिखा है मैंने, देखो। अब क्या फाइंड करना है सेकंड में? एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री। दैट मींस यहाँ पे ध्यान देना एवरीवन, एडजेसेंट एंगल्स तो फाइंड करना है, मुझे कॉम्प्लीमेंट्री बोला है यानी एडिशन कितना होना चाहिए? 90 डिग्री एंगल। तो आपको देखना है कि 90 कहाँ पे बन रहा है। तो ये एक 90 बन रहा है, यस मैम। उसके है ना? और इससे ED भी 90 बन रहा है, पर इसमें EOD। दो एंगल नहीं है, दो एंगल नहीं है। और यहाँ पे आपको पैर दिख रही है ना कि दोनों का एडिशन 90 है यस। ना? तो मुझे क्या फाइंड करना है? एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नाउ एंगल AOD and angle AOE, they are also adjacent angles. Why? Because OA is the common arm. Okay? Yes. So my answer is AOB and angle AOE. समझ आ रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes मैम। Okay. Completed everyone up to second one? Yes, completed. Yes मैम। Ma'am, completed. नेक्स्ट इज, देखो बेटा ध्यान से, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स दैट मींस एडिशन इज 90। अब दो एडिशन इज 180, एडिशन इज 180, और इक्वल कब होंगे? एक एंगल कितने का होगा? 90. 90। डायरेक्टली डायग्राम से दिख रहा है ये वाला 90 है और ये भी 90 है। तो कौन Yes, कौन से ma'am. एंगल आएंगे? BOE DOE. Okay, BOE and angle BOE. Easy? Yes, ma'am. Yes. चलो Yes, ma'am. देखो। Completed, ma'am. Okay, everyone. No, ma'am. Completed. Yes, ma'am. Completed. Completed, ma'am. Okay, बेटा। Okay. वेट ही कर रही हूँ। फर्स्ट एंड सेकंड निकाल दो बेटा। हाँ मैम। ओके। Ma'am, can I see the answer of fourth one? Ma'am, fourth one. Yes बेटा, मैं चांस दे रही हूँ। मैं क्वेश्चन लिख दूँ पहले? आया था ना
तो मैम ये एंगल की साइंस मैं करने जा रहा था तो मैम ने एल समझ लिया तो मैम ने पूरा सम रॉन्ग दे दिया तो एंगल है ना बेटा, ऐसे थोड़ा स्लैंटिंग में करना होता है ना? मैम मेरा पेपर खत्म होता तो मैंने जल्दी में एल लिख दिया था तो पूरा रॉन्ग आया था सम। सारी मेथड राइट थी। अब जल्दबाजी नहीं कर। मैम कैन आई से आंसर? कौन है? व्हाट्स योर नेम? वनीत मैम। वनीत है। ओके बेटा, 2 मिनट। हाँ, पहले मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं फिर तुझे ये आंसर दूं। सबसे Okay, पहले ma'am. है अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री यानी एडिशन तो 180 रखना है और दोनों 90 नहीं दिखने चाहिए, बाकी कोई भी मेजर हो। चलो ध्वनि, पहली पैर बताओ। मैम AOE। मैम सॉरी AOC। और उसके साथ AOC तो लाइन है, स्ट्रेट लाइन ना, एंगल बन रहा है। 2 पैर बनाना है बेटा जिसका आंसर 180 हो। देखो ध्यान से, तो मुझे यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है। देखो मैं आपको सिखाती हूँ कैसे सारी पैर फाइंड करना। सब एवरीवन ध्यान दो, ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है। तो अगर मैं एक एंगल लेती हूँ AOB, है ना, तो उसके साथ पूरा एंगल ले सकते हैं AOD, तो दोनों का एडिशन 180 होगा। यस। है ना? सिमिलरली अगर सोचो कि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन, तो नीचे भी आप देखो, अगर ये वाला एंगल लेती हूँ मैं COD, है ना, तो उसके साथ कौन सा होगा 180? COB भी हो सकता है, COP मैम। है ना? अब देखो ये भी एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है सबको, यस। स्ट्रेट लाइन दिख रही है। तो Yes, अगर मैं इतना भी एंगल ले रही हूँ AOE, तो उसके साथ कौन सा आएगा दूसरा एंगल? EOC। COE या EOC लिखो। सेम वे दूसरी साइड भी देख लो साथ में, तो कौन सी पैर दिख रही है? AOB एंड BOC। कितने सारे पैर है देखो। आए समझ में? मैंने कैसे Yes, फाइंड ma'am. किया बेटा? पहले एक मैम straight आपने line हाफ हाफ करके किया। एग्जैक्टली, तो हाफ करके अपर हाफ भी देख लेना है, लोअर हाफ भी देख लेना है, तो दोनों साइड कवर्ड हो जाएगी। ओके मैम साइड प्लीज। हाँ बेटा, एक्सप्लेन कर दीजिए। कंप्लीटेड मैम। वेट करते हैं ना, सबको पढ़ाते हैं ना। मैम डन। मैम डन। ओके मैम डन। मैम 2 मिनट्स मैम। बेटा मैं अपने टाइम से ही चलूंगी, बोलने की जरूरत नहीं। चलो कंप्लीटेड। Yes No, ma'am. 1 minute last. ओके बेटा, टेक योर टाइम। Yes, ma'am. Done. डन मैम। डन मैम। अरे सुन लिया। Now my next question is adjacent angles that do not form a linear pair. ऐसे एडजेसेंट एंगल फाइंड करनी है कि जो लीनियर पैर नहीं बना रहे, यानी अब मुझे स्ट्रेट लाइन नहीं देखना है। Ma'am, can I? AOE लेती हो तो दूसरा कौन सा होगा बताओ? EOD. के साथ EOD. EOD. DOE. DOE ले सकते। सेम वे अगर मैं AOE वापस से लेती हूँ तो उसके साथ दूसरा कौन सा एंगल बनेगा? AOB भी बन सकता है। Yes, ma'am. BOC। है ना? मैम AOE भी बन सकता है। DOA. मैम यस मैम मैं एंगल ही बता रही थी। ओके चलो बेटा, थर्ड को बता दो। चलो नेक्स्ट पैर।
अगर मैं ले रही हूँ DOE, तो DOE के साथ कौन सा बनेगा? COD. मैम COD. ओके बेटा, COD लिखते हैं, ठीक है। Angle Okay. BOE and angle Okay, EOD. मैम. एंगल BOE, E. बोलो। कितने सारे एंगल है? बहुत सारे। DOE के साथ कौन सा लिखेंगे? And angle BOC. EOC, है ना? समझ आ रहा है? यस मैम. ओके। देखो एक्चुअली सारे पैर में लिखना है ना, सब साथ में, तो एक सीक्वेंस फॉलो होता है। देखो एक मिनट, आपको सीक्वेंस सिखाती हूँ। जैसे जैसे फर्स्ट मैंने ले लिया AOB, ठीक है, तो AOB के एग्जैक्टली बाजू में AOE है, तो ये एक पैर हो गई। वापस से AOB को कांस्टेंट रखो, तो इसके साथ मुझे ये वाला नहीं लेना है, क्यों? वो तो लीनियर पैर फॉर्म कर देगा, पर ये पूरा ले सकती हूँ ना, है ना कि नहीं? यस मैम. तो AOB के साथ पर AOC हो रहा है, तो AOC तो स्ट्रेट लाइन हो रही है ना पूरी, समझ आ रही है? तो Yes. ये बहुत बड़ा एंगल हो रहा है, तो वो चलेगा। तो AOB के साथ दूसरा नीचे वाला ले लो BOC, है ना। बाकी की पैर खुद से बनाओ, बहुत सारी पैर बन रही है। AOE, तो AOE के साथ मैंने लिखा EOD, है ना। फोर्थ वन EOD, जहां से एंड होता है वहां से स्टार्ट करो, DOC, ठीक है। अब DOC और BOC नहीं लिखेंगे, दोनों लीनियर पैर फॉर्म कर रहे हैं। डन? किसी को कोई डाउट है इसमें? नो मैम. No, ma'am. मैम कंप्लीट नहीं हुआ. 1 मिनट. हाँ बेटा, 1 मिनट। चलो, इजी चैप्टर है ना, तो डिफिकल्ट लग रहा है? मैम दिखने में बहुत डिफिकल्ट है पर इजी है. इजी है ना? चलो डन बेटा, तो नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं। डन मैम. कंप्लीटेड मैम. ओके बेटा। मैम 2.2 5.2 सॉरी। नहीं, उसके पहले कुछ एक्सप्लेन करूंगी। मैंने सारे एंगल्स नहीं लिखा है, आई थिंक आपको लिखा है सब, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, ऐसा कुछ नहीं लिखा है ना? No, ma'am. ध्यान दो, बस अब सबका मुंह ये लाइट दिख रही है ना आपको, आई थिंक सही है। मैम आपका बोर्ड भी आधा ही दिख रहा है. हाँ, आधा मैंने इसलिए रखा क्योंकि मैं पूरा रखती हूँ तो इस साइड लाइट दिखती है ना। यस मैम, आप आधा ही रखो, वो परफेक्ट दिख रहा है. नहीं, मैं ये लाइट वाला पोर्शन है ना, इतना यूज नहीं करूंगी। देखो, देयर आर टू लाइंस L and M. First condition should be that they are parallel. पैरेलल होनी चाहिए। और एक है ये ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल यानी उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। अब मैं बताती हूँ कौन कौन से एंगल्स होते हैं। किसी को भी नंबर दे देते हैं, 5, 6, 7, 8। सबसे पहले मैंने एंगल बोला है वर्टिकली, ये तो सबको आता ही है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, है ना। तो यहाँ पे ये वाला भूल जाओ, सिर्फ ऊपर का देखो। तो ये 2 लाइन इंटरसेक्ट का पॉइंट दिख रही है, नीचे का भूल जाते हैं तो कौन कौन सी पैर हो गई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की, देख के बताओ। Angle 1 and angle 3. Yes, ये दोनों वर्टिकली है, 1 and 3। Angle 2 and angle 4. एंगल 2 एंगल 1 मैम 1 and 3 and 2 and 4. ओके। 1, 3, 2, सिमिलरली 4. नीचे भी कोई पैर बन रही है, Angle 5 and 7 and angle 6 and 8. मैम 5 थोड़ा सा 4 जैसा दिख रहा है. कौन सा 5? ये चलो ऐसा कर दो, ठीक है। अब ये देखो जो मैंने फर्स्ट लिखा, इसमें किसी को डाउट है ना तो वो बोलो, बाकी सब म्यूट हो जाओ। नो मैम, मैम हमें ये लिखना है. हाँ, वो मैं बताती हूँ बेटा, बताती हूँ, उसके बाद लिखना, पहले समझ लेते हैं, है ना। हाँ ओके मैम. मैम which page number? नेक्स्ट इज ऑल्टरनेट, कोई पेज नंबर नहीं है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ध्यान से देखना, इस
इसमें मैं शेप भी लिख रही हूँ तो आपको समझ आए कि कौन से शेप देखने हैं। एक तो जेड हो सकता है, तो डायग्राम में देखो ऐसे जेड दिख रहा है आपको, तो कौन कौन सी पैर दिख रही है, जेड दिख रहा है तो जेड में ना ये दोनों सेम होते हैं एंगल, दिख रहा है आपको, दिस एंड दिस। तो इस साइड अगर मैं जेड बना रही हूँ तो कौन से दोनों एंगल सेम दिख रहे हैं? 2 and 8. नहीं बेटा, 4 ऐसे 6. बनाने 4 ना and 6. 4 and 4 6। and 6. तो एक है 4 and 6। अब z की जगह पे उल्टा z भी हो सकता है, तो ये देखो उल्टा z दिख रहा है सबको, 3 and 5. तो 3 and 5। ओके, अब दूसरे दो भी हो सकते हैं, एक है ऐसे n, तो ये एंगल भी हो सकते हैं, एक है उल्टा n, है ना। कभी वो कौन से सिचुएशन में देखेंगे, देखो ये मैंने ऐसे बनाया और ये ट्रांसवर्सल बनाया, ठीक है ना। तो ये वाली सिचुएशन में आपको उल्टा दिखेगा, जैसे दिस और ये ऐसे, तो ये दोनों एंगल सेम होंगे। आ रहा है समझ में सबको? Yes, Yes. ma'am. चलो इतना लिख लो पहले, फिर दूसरी पैर से फिर डायग्राम बनाना है ना, कंपल्सरी, पूछना नहीं, क्योंकि विदाउट डायग्राम कैसे पता चलेगा वन एंगल कौन सा है, थ्री एंगल कौन सा है। एग्जाम में मैम बिना स्केल के रफ ड्राइंग कर सकते हैं? हाँ, कंस्ट्रक्शन में सिर्फ स्केल यूज करनी है, बाकी रफ ड्राइंग भी कर। मैम वो एग्जाम में कह रहा है शायद। हाँ हाँ, एग्जाम में भी बोल रहे हैं। पैरेलल लाइंस, अगर आपका ड्राइंग अच्छा है, वैसे लाइन वालों का पेपर आता है, हाँ ब्लैंक पेपर यूज करते हो। एग्जाम में सिर्फ कंस्ट्रक्शन होता है ना, उसमें ही आप यूज करो। जिसकी ड्राइंग बिल्कुल ही खराब हो तो वो स्केल ही यूज करना, जिसको सीधी लाइन बनानी नहीं आती। ओनली आई थिंक 3 या 5 स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन हो रहा है, बाकी सब सुनकर रहेगा ना। Yes, ma'am. वह आपने देखो मैम क्वेश्चन 1 में 17 लग रहा है। कौन से? अच्छा वो निकल गया होगा ना सीरियस करते समय। हाँ बेटा, अच्छा एंगल। Then you have to write this. यस बेटा, कब से सबका लिखना भी कंप्लीट हो गया। Yes, ma'am. इसके ऊपर कोई भी पेज नंबर नहीं है। कंसेप्ट है बेटा, जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, यही कंसेप्ट के बेस पर नेक्स्ट एक्सरसाइज पूरी है, इसीलिए। ओके Done, ma'am. बाकी सबको करने दो। मैम डन। नो मैम। ओके Ma'am, done. ठीक है, जिसका बाकी है वो बोलो, बाकी में इरेज कर। Ma'am, wait. ओके मैम आपने सेकंड नंबर तो लिखा नहीं मैम, 1 और फिर थर्ड डायरेक्ट। ऐसा लिखा, सॉरी, चलो सेकेंड। चलो कंप्लीटेड। Yes, ma'am. मैम Yes, 1 ma'am. मिनट। मैम आपने क्या लिखा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। Done, ma'am. एनीवन Ma'am, लेफ्ट? wait. 1 मिनट मैम। 1 minute. बोलते हो 1 मिनट, लेते हो 4 मिनट। मैम डन मैम।
नेक्स्ट इज म्यूट करो बेटा, किसी के माइक से बहुत आवाज आ रही है। थर्ड इज करस्पॉन्डिंग एंगल, नाम सुना है? करस्पॉन्डिंग एंगल यानी देखो, अगर मैं एंगल वन कंसीडर कर रही हूँ ना, ये एक ही साइड देखना है अपने को, इस साइड ओनली वन दे रही हूँ ना, 1 और 5 हाँ बाद वाला मुझे स्किप करना है, फिर उसके बाद वाला देना है। तो एंगल 1 एंड एंगल 5। यस मैम मुझे पता है। ओके बेटा, इफ आई एम टेकिंग फोर्थ वन, एंगल 4, तो फिफ्थ को स्किप कर दो और उसके बाद वाला ले लो। 8 तो एंगल 4 4 and एंड 8 एंगल 8। सिमिलरली ऑन दिस साइड, एक साइड मेरी कंप्लीट हो गई ना, नाउ दिस साइड, तो एंगल 2, तो 2 के बाद तुरंत कौन सा आ रहा है? 3, तो उसको स्किप कर दो और 6 ले लो। सो एंगल 2 एंड एंगल 6। एंड नेक्स्ट अगर 3 ले रहे हो तो 6 स्किप हो जाएगा, नेक्स्ट इज 7। आए समझ में? किसी को कोई डाउट है वही बोलना, बाकी यस मैम नहीं। जिसको डाउट है वही बोल। मैम कॉरस्पॉन्डिंग लिखा है ना मैम? हाँ PONDING। PONDING, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटीरियर एंगल ऑन वन साइड। इंटीरियर एंगल ऑन वन साइड जो होता है ना, उसका एडिशन ऑलवेज 180 होता है, और करस्पॉन्डिंग एंगल ऑलवेज इक्वल होता है, ठीक है। जैसे इंटीरियर एंगल किसको बोलते हैं? देखो ये ट्रांसवर्सल है, ये 2 लाइंस पैरेलल है, तो इसके अंदर कौन से एंगल दिख रहे हैं? एक साइड बड़ी, तो 4 and 5 है ना, ये अंदर दिख रहा है ना आपको। तो इंटीरियर एंगल ऑन वन साइड का एडिशन ऑलवेज 180 होगा। तो कौन कौन से इंटीरियर एंगल है? एंगल 4 एंड एंगल 5। सिमिलरली ऑन दिस साइड 3 and 6। ओके, आ रहा है समझ में? यस मैम। ओके, लास्ट एक है, लिख लिया सबने यहाँ तक? मैं अपने इंटीरियर एंगल के बाद क्या लिखा है? ऑन Interior वन angle. साइड, इंटीरियर एंगल ऑन वन साइड या फिर इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, कोई भी चले। इंटीरियर एंगल Ma'am, ऑन done. सेम साइड। ओके, जिसका बाकी है वही बोलो बेटा। 2 minutes मैम। मैम 2 पेज लिख नहीं रही। कौन सी बेटा? नहीं दिख रही? बस मैम मैं ऐसा नहीं बता रही, ये जो इंटीरियर में की है ना, उसमें 2 पेज लिखने की मेरे बाकी रही है, ऐसा बता रही हूँ। अच्छा, ओके, मुझे लगा दिख नहीं रही, इसलिए मैंने बोर्ड का एडजस्ट किया। चलो मैम पहले जैसा था वैसा कर दो, वरना हाँ, कर दो, एंगल कर पूरा दो। नहीं आ रहा। ठीक है, ये- चलो कंप्लीटेड। यस मैम। कंप्लीट। ओके, चलो लास्ट वन इज फिफ्थ वन। आई थिंक वो आपकी बुक में नहीं गिवन है, पर आप समझ लो। फिफ्थ वन, alternate exterior angle, है ना। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर मैंने ऑलरेडी सिखाया, जो सेकेंड वाला सिखाया था। जैसे ये Z बन रहा है, तो अल्टरनेट इंटीरियर कौन कौन से है? 4 and 6, है ना। उसके बाजू वाला एक्सटीरियर यानी जो बाहर की साइड के लिए 1 and 4 के 7 बाजू वाला कौन सा है? 1। 1 और 6 के बाजू वाला कौन सा है? 7 So 1 and 1 and 7 7। सिमिलरली ये उल्टा Z, 2 and 8 2 and 3 and 5 alternate into exterior, है ना। ये एमसीक्यू में आपको यूजफुल होगा, ठीक है। एंड वन लास्ट इज, ये तो सबको आता ही होगा, लीनियर पेयर, है ना। यस तो अगर मैं सबसे पहले इतना ही ब्लॉक यूज कर रही हूँ, तो कौन कौन से लीनियर पेयर है? तो 1 and 2, यहाँ जहां पे मुझे स्ट्रेट लाइन दिखे, फिर 1 के साथ दूसरा कौन सा दिख रहा है? 1 and 4, 1 and 4 2 and 3 2 and 5 3, and 6
and 5 and 8 and 6 and 3 7. and 6 नहीं आएगा, 3 and 6 नहीं आएगा, 3 and 4. मैम वो मैं 5 के साथ बोल रहा था 6. अच्छा 5 and 6, 5 and 8, 6 and 7, 7 and 8. इसमें किसी को नहीं समझ आया तो बोलो. मैम नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत इजीली आ जाएगी. मैम लीनियर पेयर में अपने जितने लिखे एग्जांपल्स वो सारे लिखने के हैं. हाँ बेटा सारे. इसमें एडिशन 180 होता है, ब्रैकेट में ऐसा लिखना है 180. सारे इसमें लिखने की आपको समझ आना चाहिए, है ना. Completed everyone? Yes, ma'am. No, ma'am, 1 minute. ठीक है. मैम डन. Completed, ma'am. हाँ एक मिनट, जिसका हो जाता है ना वो बैठे बैठे रीड करो, क्योंकि मैं पूछूं तब आंसर आने चाहिए. हो गया सब? Yes, ma'am. हो गया. नाउ एक बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं तो मुझे समझ आ जाएगा, आपको आ गया. उसके बाद चालू करते हैं. पेज नंबर 106. देखो मैंने लिखा है, बार बार नहीं पूछना. ट्राई दिस. देख लो, जिसको नहीं लिख रहा है वही बोलना. मिला सबको? Yes, ma'am. मैम टेक्स्ट बुक में लिखना है आंसर. हाँ टेक्स्ट बुक में लिख लो. नेम द पेयर्स ऑफ द एंगल्स. तो मेरे को तो फर्स्ट फिगर में कौन सा दिख रहा है? एक्चुअली ये एक भी पेयर अपने लिख ही नहीं सकते, बिकॉज उसका रीजन क्या है, कोई भी पैरेलल ही नहीं दिख रहा है ना. पर अपने इसमें बोला है तो लिखेंगे. चलो फर्स्ट में कौन सी पेयर दिख रही है बताओ. मैम यस. मैम मैं अभी मेरे रिलेटिव्स के घर आई हूँ, तो फिर मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है, तो फिर मैं सिर्फ सुनूं और नोटबुक में आंसर्स कॉपी डाउन करूँ तो चलेगा? हाँ चलो मैं डायग्राम बनाती हूँ. चलो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा ऐसा है. इट इज 1 and 2. ये कौन से एंगल हुए? चलो यस अंश. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. यस दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल. कोई डाउट है? देखो कोई बोलने का नहीं, हैंड रेज करना, मैं सबको आंसर पूछूंगी. नाउ नेक्स्ट फिगर दिस वे है 3 and 4. कौन से एंगल हुए? जल्दी है, थोड़ा स्पीड में जाएंगे. ट्राई दिस, टाइम वेस्ट होगा. यस सी. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. वेरी गुड बेटा. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना. देखो इसमें दिख रहा है ना, मैंने बोला था एन और उल्टा एन ऐसा दिखेगा. ठीक है. नेक्स्ट फिगर. बाकी किसी को नहीं आ रहा है? होंगे. एक बार अंश ने आंसर दिया, एक बार तीज ने दिया, बाकी किसी का हैंड रेज नहीं है. मैम कैन आई से ध्वनि? मैम मेरा एड्रेस मैं ऐसे नहीं पूछूंगी बेटा, जिसका हैंड रेज होगा उसको ही पूछूंगी. यस जिया. मैम अल्टरनेट एक्सटर्नल एंगल. रॉन्ग बेटा. देखो ये तो मैम एक कैन आई? साइड पे है. नहीं एक मिनट, मैंने और एक चीज लिखानी रह गई. आपने जहाँ पे लिखा है ना इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, वहां पे ऐसा एक शेप बनाओ, सी और उल्टा सी, ऐसा ब्रैकेट में शेप बनाना. सी और उल्टा सी. देखो ये उल्टा सी दिख रहा है और एक ही साइड पर है ना. ये कौन से एंगल होंगे बेटा? इंटीरियर मैम अल्टरनेट इंटीरियर. इंटीरियर नहीं, ओनली इंटीरियर मैम एंगल. ओनली इंटीरियर. Interior angle on the same side of a transversal. Okay, वहाँ पे शेप बना देना, सी और उल्टा सी. मैम ये लिख दे अलग से. हाँ ये लिखा है मैंने, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड.
सिर्फ इतना ही लिखे, ऑफ का ट्रांसवर्सल नहीं लिखा है, सिर्फ वहां पे शेप बना देगा सी और उल्टा सी, है ना? मैंने लिखाया हुआ है बेटा, देखो। यस मैम, मैं भूल गया था। कोई बात नहीं, चलो कंप्लीटेड। यस चलो नेक्स्ट वन कुछ ऐसा शेप है 7 और 8 कौन से एंगल हुए? फिर कौन बोलेगा इस बार? यस रुतवा, यस रुतवा, 100 किया बेटा, आंसर क्यों नहीं बोल रहा है जल्दी? मैम वो चली गई। तो धारा, धारा यस मैम, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये कैसे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हुआ बेटा? एक एंगल लिया, मैंने एक ड्रॉप किया, उसके बाद वाला एंगल लिया। ऐसे जंपिंग वाले कौन से एंगल थे? एक लेना है, फिर जंप करना है, फिर दूसरा लेना है। मैम उसका नाम याद नहीं आ रहा। देखो मैंने लिखा है वहां से, देखो। मैम कहना है अरे नहीं, धारा लिखा बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल ऐसे लिखा है। करस्पॉन्डिंग में ऐसे याद रखना, जंपिंग एंगल, जंपिंग एंगल याद रखना, याद रहेगा, है ना? ये मैंने नाम दिया है, ऐसा कोई नाम नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट इज ध्वनि। मैम उसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं आता? किसमें बेटा? इसमें? नो मैम, ये वाला? वो नेक्स्ट वाला में। हाँ, इसमें अल्टरनेट इंटीरियर, ये सही है बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर। ओके, कंप्लीटेड एवरीवन। और जो लास्ट फिगर है इसका आंसर कौन देगा? लास्ट वन वेरी इजी, सबसे इजी क्वेश्चन है इसका आंसर। ध्वनि तूने तो अभी दिया ना, तो बाकी से कोई हाथ ऊपर नहीं कर रहा है। यस ध्वनि, लास्ट आंसर क्या आएगा? मैम मैम इसका इसका मैम नहीं लास्ट है मिल ना, रहा। ऐसा नहीं है कुछ? 11 12 लिखा है, कौन यस से मैम, एंगल हुए? कौन से एंगल हुए बोलो? स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, लीनियर पैर। लीनियर पैर है मैम, वो नीचे था ना इसीलिए। ऐसा? चलो लिखो Yes, लीनियर पैर, जल्दी जल्दी। इसीलिए मुझे पता नहीं चल रहा था। कोई बात नहीं, समझ आया ना? इसलिए इसके सारे प्राइजेस जो है ना बहुत अच्छे हैं। डन? यस मैम। चलो नेक्स्ट, पेज नंबर 109। दिख रहा है? ट्राई दिस। यस देखो ये कंडीशन बहुत, ये क्वेश्चन प्रॉपर्ली गिवन है। क्यों? देखो उसका लिखा है L इज पैरेलल टू M। अच्छा मुझे क्वेश्चन भी लिखना है बेटा। आप नेक्स्ट टाइम रिलेटिव्स के घर जाओगे तो टेक्स्ट बुक लेके जाना, या फिर आप ऑनलाइन PDF डाउनलोड कर दो, है ना? मेरे लिए भी टाइम वेस्ट होता है। देखो कंडीशन इज गिवन L इज पैरेलल टू M, T इज अ ट्रांसवर्सल। पैरेलल होता है ना, जब भी मैंने बताया था पैरेलल होता ही तो ही अपने बोल सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ओके, अब ये कौन से एंगल हुए बता, ये कौन सा शेप बन रहा है? कौन सा शेप बन रहा है? Z। तो Z वाला एंगल कौन से होता है? मैम अल्टरनेट एक्सटीरियर और अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर। ओनली बेटा अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर नहीं आएगा, ओनली अल्टरनेट इंटीरियर। तो x की अल्टरनेट इंटीरियर, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 60। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑलवेज इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं? इक्वल। टेक्स्ट बुक। यस बेटा, लिख दो चलो टेक्स्ट बुक, और पेंसिल से लिखना, खराब नहीं करते लोग। कंप्लीटेड? कंप्लीट। चलो नेक्स्ट, सी। ये गिवन है 55 और ये गिवन, कौन सा एंगल गिवन है बताओ? A is parallel to B, A is parallel to B and C is a transversal। ये कौन सा शेप हुआ? ये कौन से एंगल हुए बताओ मुझे? उल्टा एन।
हाँ, तो ये कौन से एंगल हुए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो y इक्वल टू 55। आप ऐसा लिख देना, हाँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी आपको याद रहे कि ये कौन से टाइप के एंगल। ठीक है, लिख लिया सबने? यस मैम। Now next question is, here it is given L1, L2. अब ये देखो, ये 1 मैम फर्स्ट का भी अल्टरनेट इंटीरियर। हाँ, वो भी अल्टरनेट इंटीरियर Z है ना बेटा? यस मैम। नेक्स्ट इज देखो 1 इक्वल टू 2 ऐसा पूछा है, 1 इक्वल टू 2। आंसर इज नो। क्यों नो बताओ? क्योंकि L1 इज नॉट पैरेलल L2, L1 इज नॉट पैरेलल टू L2, है ना? मैंने बोला था ना, जब भी पैरेलल होता है तो ही होता है। क्लियर एवरीवन? यस मैम। ये अगले वाले ट्राइजेस में आपने क्यों कंसीडर किया था? क्योंकि आपको सिर्फ सीखना था कि ये कौन सा एंगल है। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, पैरेलल होता है तो ही होता है। डन? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैम वो वाला आगे जाके ट्रायंगल बन जाएगा। वेरी गुड, यानी इंटरसेक्ट हो जाएगा। यस मैम, वो सीधी सीधी लाइन खींचेंगे और नीचे भी। ऐसा देख के ऐसा पता चल रहा है जरा ड्राइंग अच्छा होता है, थिंकिंग लेवल है ना। L is parallel to N, T is a transversal. What is the value of Z? ये कौन से एंगल हुए बताओ? ये कुछ उल्टा सी और ऐसा कुछ दिख रहा है? यस। कौन से एंगल हुए? इंटीरियर एंगल ऑन द वन साइड, सेम साइड और 60 डिग्री। अरे अरे अरे, मेरे कान बज रहे। Interior angle on the same side and sum of interior angle on the same side is always 180. बताया था ना मैंने? So 60 plus Z equal to 180. So Z equal to 180 minus 60. So Z equal to 120. आया समझ में? यस मैम। जल्दी लिखो। मैम लिख दिया। ओके, लिख दिया मैम। आपको तो सिर्फ लिखना ही है, डायग्राम भी कहाँ बनाना है। चलो नेक्स्ट, कौन सा एंगल है, कौन बताए? किसके पास टेक्स्ट बुक नहीं थी? क्या नाम था? मितवा। मितवा, चलो आंसर मेरे बताओ। पास तेरे लिए नहीं मैंने थे। सारे क्वेश्चन ड्रॉ किए। नाउ टेल मी द आंसर। व्हाट इज द आंसर बेटा? हेलो मैम। हाँ बोलो, मुझे सुनाई दे रहा है। हाँ मैम, किसका? इसका ना? हाँ, इसका। मैम मतलब क्या बोलना है? आपका आवाज ही नहीं आ व्हाट इज रहा। द वैल्यू ऑफ x? और कौन से एंगल हुए बेटा ये? मैम एक एंगल लिया, फिर मैंने ये वाला नहीं लिया, वापस से ये लिया। जंपिंग कर रहा है। कौन से एंगल हुए? मैम कहना है। मैम कहना है। मैम इसका इजी आपने अभी बताया था, जंपिंग एंगल का। इसीलिए मैंने ये अच्छा नाम दिया इसको, जंपिंग, तो सबको याद रहे। यस दक्ष। Yes, ma'am. They are corresponding angles. ओके, याद रहेगा बेटा, जंपिंग और 120. ओके, सो x इज आल्सो, पर एग्जाम में कभी भी ऐसा वर्ड यूज नहीं करना, जंपिंग एंगल। मैम बिना रॉन्ग दे देंगे। हाँ, रॉन्ग देंगे, फिर बोलेंगे ऐसा नाम किसने दिया? आंसर बताओ। मैम कैन यू तो हियर? मैम यस बेटा, यस, आई एम मैम एबल टू हियर। डिस्कनेक्ट हो गया था। ऐसा है, चलो नेक्स्ट आंसर बताओ, कोई बात नहीं, चलो लास्ट वन दे लिए रखा है। चलो P Q L M, ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत सारी मेथड से हो सकते हैं, जिसका जैसे दिमाग चले वैसे करना है। चलो मैम ये थोड़ा हार्ड वन है। हाँ नहीं, इजी है। देखो, सबसे पहले जो वैल्यू गिवन है ना, स्टार्ट कहाँ से करना है क्वेश्चन? जहां पे वैल्यू गिवन है
तो मुझे ये उल्टा सी दिख रहा है आपको सबको। मितवा कौन से एंगल हुए बेटा उल्टा सी? मितवा मौन व्रत रखा है, अभी व्रत चल रहा है इसमें। उल्टा सी कौन से एंगल हो रहे हैं? मैम मेरे को बताने दो। कौन है? मैम मैं बताऊं तो मेरी क्या? वाली कौन? चलो बताओ। मैम मैंने पहले बुकिंग की थी। मैम इंटीरियर। पूरा क्यों नहीं बोलते हैं? इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड है ना, तो इन दोनों का एडिशन कितना होता है? 180. मैम 180. 180। So 60 plus A equal to 180. So A equal to 180 minus 60। 120. जब भी क्वेश्चन लिखो ना तो यहाँ पे रीजन लिखना कंपलसरी है ना। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड है ना। मैम अब मुझे A मिल गया है। अब देखो A अगर मिल रहा है तो मुझे A के ऑपोजिट वाला ये मिल सकता है। मैम यस, ये A के ऑपोजिट वाला कोई एंगल, इसका नाम मैं दे देती हूँ X, तो ये मिल सकता है। कितना होगा बताओ? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X? मैम कैन आई से? बोलो। मैम 120 डिग्री। यस, क्यों? बिकॉज दोनों कौन से एंगल हुए? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना। यस मैम। क्यों मैंने x फाइंड किया? बिकॉज इसीलिए कि यहाँ से फिर मैंने x लिया, c को नहीं लिया और d को लिया, तो ये कौन से एंगल हो गए? मैम करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? आ रहा है मैम। बहुत अच्छे से आ रहा ओके है। चलो, अब ये D मिल गया है ना मेरे को। अब D और C बाकी है, तो D और B कौन से पेयर फॉर्म कर रहे हैं? लीनियर पेयर। मैम तो लीनियर। मैं ऐसा लिख सकती हूँ B plus D equal to 180। मैम लीनियर Yes, ma'am. यस मैम। ओके, तो D की जगह पे 120 डाल देते हैं, तो D का आंसर कितना आएगा? 60. 60। चलो D तो आ गया मेरा 60। अब देखो D और C कौन से एंगल हुए? मैम मित्रा मुझे मैसेज कर रही है कि उसका नेटवर्क इश्यू है तो वो आंसर नहीं दे पा रही है। कोई बात नहीं है बेटा, नेक्स्ट टाइम करेंगे। B और C कौन से एंगल हुए? Ma'am, vertically opposite angle. यस, मैम वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके बेटा, मैं सबको सुन सकती हूँ। So C is also 60. अच्छा क्वेश्चन था ना? मजा आया कि नहीं है? यस मैम, सारे इसमें ही डिवाइड होते हैं। हाँ, अभी देखना 5.2 बहुत अच्छे से है। मैम D is equal to 120 है। कौन सा बेटा? D is 120। हाँ देखो ये लिखा ना मैंने। हमारे स्कूल में भी सर ऐसा बोलते कि ट्राई दिस करो तो हाँ। एक्सरसाइज इजीली आ जाती है। यस, ट्राई दिस है ना, एक भी छोड़ना नहीं है। बिकॉज उसका रीजन क्या है पता है? एनसीईआरटी इज वेरी लिमिटेड सिलेबस है ना, तो बुक में जितने भी एग्जाम्पल है, जितने भी ट्राई दिस है, सब अच्छे से करो। और ऐसे एग्जाम्पलर करके भी एक रेफरेंस बुक आती है, वो भी एक अच्छी आती है। मैम प्रैक्टिस बुक ओके बेटा, तो करना है ना ट्राई। मेरे पास आरडी शर्मा की है मैम। ओह बहुत हाई लेवल हो गए। अभी पहले एग्जाम्पलर करो फिर आरडी पे जाना। मैम मेरे पास है। मुझे तो हर साल गिफ्ट ही मिलती है आरडी शर्मा। ऐसा पेरेंट्स की ओर से, बेटा पढ़ो बेटा पढ़ो बेटा। मैम ऐसे नहीं मैम, मुझे अंदर ले लो ना, मेरे ये डिवाइस में बैटरी नहीं है। ले लिया मैंने, कोई जिया करके एंटर हुआ अभी। हाँ मैम वही।
ओके चलो डन कंप्लीटेड बेटा, जल्दी करो, मेरा दूसरा भी लेक्चर हो गया सबका। यस मैम। यस मैम। तो बातें क्यों कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट, अब लास्ट ट्राई दिस, यानी इसके बाद एक लेक्चर में अपनी पूरी एक्सरसाइज 5.2 कर देंगे, है ना। चलो ट्राई दिस पेज नंबर 110, जल्दी, सबसे इजी लगेगा अभी ये पेज 1, अरे पेज नंबर 110 दिख रहा है सबको? नहीं यस मैम। मैम टेक्स्ट बुक दिखाते ना। हाँ बेटा टेक्स्ट बुक सबसे पहला एकदम इजी है। क्या पूछा है उसमें, देखो TLM, ऐसे दो एंगल, अब उल्टे क्वेश्चन आए हैं ना। आंसर इज ऑलरेडी गिवन, अब आपको पूछ रहा है पैरेलल है, इज L पैरेलल टू M, सो माय आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि ये Z बन रहा है ना, सेम एंगल है। alternate interior angle. Alternate interior. अगर ये 50 की जगह 40 आता तो माय आंसर इज नो। No. मैम है ना? ओके यस, अल्टरनेट मैम पर ऐसा क्यों? इंटीरियर 40 ऑपोजिट क्या बेटा? क्या 40 आता तो क्यों नहीं होता पैरेलल? क्यों नहीं होता? बिकॉज ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है जो सेम होने चाहिए, सेम नहीं है तो ये पैरेलल नहीं होगा बेटा। तू सोच अगर 40 है तो ये नीचे जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा, तो ये लाइन ऐसे जाएगी, सोच सकता है यस मैम। इसीलिए क्योंकि पहले ही कंडीशन मैंने सिखाई थी कि सारे पैरेलल होंगे तो ही ये सारे एंगल्स होंगे, है ना। हो गया सबका? यस मैम। यस मैम। मैम कंप्लीटेड। ओके चलो नेक्स्ट, L and T, here it is 50 degree and 130, L is parallel। देखो अब तो ये मुझे समझ ही नहीं, एक मिनट, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है कौन सा एंगल है, तो एक काम करते हैं, अगर मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, ये 50 ये बाजू वाला एंगल लीनियर पैर करके फाइंड करता है तो ये 130 होगा, है ना। फिर ये 130 एक मैंने जंप कर दिया वापस से 130, तो ये तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा, तो ये पैरेलल है। अनदर ऑप्शन इज दैट ये 130 है तो वर्टिकली ऑपोजिट से ये भी 130 होगा, और ये जो दिख रहा है मुझे उल्टा सी दिख रहा है, तो इन दोनों का एडिशन भी 180 है। आप कोई भी मेथड कर सकते हो, आ रहा है समझ में? यस मैम। ओके सो आंसर इज यस। मैम ये सब पता नहीं चला। नहीं पता चला बेटा, क्या था देखो ये 50 था, है ना, और ये दूर वाला एंगल था 130, इन दोनों का कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा है, तो मैंने क्या किया कि ये 50 था तो उसके बाजू वाले एंगल मैंने लीनियर पैर करके फाइंड किया। लीनियर पैर में दोनों का एडिशन कितना होता है 180, तो 180 माइनस 50 130, यस मैम। है ना। फिर ये 130 लिया, फिर एक एंगल ठीक किया, फिर दूसरा लिया, जंपिंग वाले एंगल थे ना करस्पॉन्डिंग, तो ये सेम आ रहा है ना, दैट्स व्हाई दे आर पैरेलल। ओके लास्ट क्वेश्चन बता दो चलो जल्दी, 70 और H कौन से एंगल है, कौन बताएगा? 70 एंड H कौन से एंगल्स है, कौन सा शेप बन रहा है? उल्टा सी। Yes, ma'am. यस उल्टा मैम। उल्टा सी बन रहा है तो एडिशन कितना होगा? 180. 180, तो H 70 minus 180 is equal 110. 110 110। डन, आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट लेक्चर में 5.2 में कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है? Yes, ma'am. ओके बाय एवरीवन। मैम मेरे स्कूल में ना 5.1 पूरी टेक्स्ट बुक में ही करने को बोला। क्या बेटा? मैम मीटिंग एंड मत करना। ओके नहीं कर रहे हैं, किसी को होस्ट बना नहीं है, मैडम ऑलरेडी है अंदर मैम पिछली बार बहुत मस्ती की थी हम लोगों ने। मैम हमारी एग्जाम है कब? मैम मंडे। मैम मेरी 2nd डेट को है। ऑल द बेस्ट बेटा, हो गए। ओके चलो बाय। मेरा तब तक रिजल्ट भी आ जाएगा। बाय। मेरी तब होगी एग्जाम।
Good evening, ma'am. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। Ma'am is connecting to audio. Good evening, ma'am. Ma'am is connecting to audio. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग मैम। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग मैम। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। गुड इवनिंग मैम। अरे मैम अभी भी नहीं आ रही। मैम अब आई। मैम ऐसा बता रहे 1 मिनट रुको तो मैं बोलूं। बेटा 1 सेकेंड आप मुझे एंटर हो जाने दो तो मैं कुछ बोलूं, है ना। एंटर होते ही आप बोलोगे आवाज नहीं आ रही है, तो अब मैं क्या करूं बताओ। मैम यस मैम गुड इवनिंग। मैम मुझे डाउट है, आप क्लियर कर दोगे? मैं बस अच्छे से एक बार अंदर एंटर हो जाऊं। हाँ जिया, विद्वा, दक्ष जिनके ऑलरेडी हाथ खड़े हैं, है ना बेटा। पहले मैं अच्छे से गुड इवनिंग बोल दूं, हम सारे डाउट्स ले लेंगे आपके। ठीक है चलो आप बोलो बेटा क्या डाउट है, टर्न बाय टर्न बोलो। चलो मैम मैं आज के दिन वीडियो लेक्चर बंद मैम मतलब आज के लेक्चर में मैं वीडियो बंद रखूं क्योंकि मैथ्स के लेक्चर में भी मेरा बहुत नेटवर्क इशू हुआ था। बेटा मैं क्या बोलूं अभी इसके बारे में, मुझे नो कमेंट्स। ओके दक्ष आपका क्या क्वेश्चन है? मैम मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। तो फिर आपने हाथ खड़ा किया है दक्ष ऐसे ही? अरे सॉरी वो मैथ्स के लेक्चर में था, फिर लोअर डाउन। हाँ जिया बोलो बेटा क्या क्वेश्चन है जिया? Yes, ma'am. Ma'am मुझे what are the accessories organs of digestive system पता नहीं चल रहा। मेरा सॉरी एक्सेसरी। अच्छा देखो एक्सेसरी मतलब क्या, हम जो बाकी के ज्वेलरीज वगैरह पहनते हैं वो है ना एक्सेसरीज। जैसे बॉयज में वो बेल्ट होगा, राइट, कैप होगी, वैसे ही एक्सेसरी ऑर्गन्स यानी क्या कि जो सीधा इन्वॉल्व नहीं होते डाइजेशन में। यानी स्टमक है तो स्टमक के अंदर खाना पास होता है और डाइजेस्ट भी होता है और आगे जाता है। बट अगर हम पेंक्रियाज लेंगे या फिर हम लीवर को लेंगे, राइट, तो लीवर के अंदर से खाना पास नहीं होता, बट लीवर एक ऐसा गैस्ट्रिक जूस बनाता है जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में रिलीज होता है, राइट, और फिर वो खाना डाइजेस्ट करता है, तो उनको एक्सेसरी ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, स्टमक जो सीधा इन्वॉल्व नहीं होता बेटा, जो सीधा वो प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होता उसको एक्सेसरी ऑर्गन बोलेंगे। यानी ऑर्गन जो साइड, जैसे हमारे पास साइड डिशेस होते हैं, मेन कोर्स तो होता है बट साइड डिश भी होती है ना। साइड डिश यानी जो हमारा मेन फोकस नहीं है। अगर हमारे घर पे पूरी रस बनाया है या पूरी चिकन बनाया है, राइट, यस बेटा, और उस टाइम पे हमारे पास पापड़ है, सलाद है, तो ये सब हमारे लिए साइड वाली चीज है ना। हम किस पे फोकस करने वाले हैं? मत बोलो बेटा देवांश बंद करो तो जरा। मैम सॉरी मैम मेरी बहन थी। हाँ अगर है तो उसको आप वीडियो ऑन करो बेटा, हाई बोल देते हैं तो फिर से परेशान नहीं करेगी, है ना। हम सब हाई बोलेंगे। वीडियो ऑन करो देवांश, हमें भी मिलवाओ उससे। कहाँ है वो? हाय बेटा, हेलो, हाउ आर यू, व्हाट्स योर नेम? आई एम फाइन मैम। व्हाट्स योर नेम बेटा? You don't have any name? जैनी खांडीवाल। ओके सो बेटा आप तो पढ़ाई कर रहे हो, है ना। आप भी पढ़ाई कर रहे हो, आपके भैया भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो बेटा? हम सब वहां पे पहुंच जाएंगे आपके घर पे। हाँ यू वांट दैट? सारे के सारे वहां पे घर पे पहुंच जाएंगे फिर। ओके
चलो बाय बेटा, आप कंटिन्यू करो। हाँ ओके, विल कंटिन्यू फ्रॉम फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस हमने फिनिश किया था, राइट? लास्ट क्वेश्चन वाज क्रिस्टलाइन। मैम आपने जो भी मुझे समझाया उसमें हम लीवर और पेनक्रियास लिख सकते हैं? यस, गॉल ब्लैडर भी लिख सकते हो आप। गॉल ब्लैडर इज गोइंग टू स्टोर द बाइल जूस, है ना? और बाइल जूस कौन प्रोड्यूस करेगा? लीवर। हम लीवर। मैम हम लार्ज इंटेस्टाइन तो नहीं लिख सकते ना? नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन कैसे लिख सकते बेटा? इट्स अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ओके मैम। ओके चलो, क्रिस्टलाइजेशन तक हमने देखा था। अब आज टेक्सचुअल एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। फाइन। हेलो मैम। यस मैम मैंने वो देखा बॉटल शेक वाला, मेरा तो कुछ बर्फ बना ही नहीं, मैंने बहुत जोर से फेंकी बॉटल को। आई थिंक बॉटल होगा बट क्रिस्टल नहीं बने होंगे, है ना? यस मैम, आपने बोला कि ठोकोगे तो बर्फ बन जाएगा, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, टेम्परेचर आपने पहले कहाँ पे रखा था? फ्रीजर में रखा था? डीप फ्रीजर में? हाँ यस मैम, डीप फ्रीजर में। ओके, टेम्परेचर कितना था? 1 मिनट देख के आया। डीप फ्रीजर में बेटा फिक्स होता है टेम्परेचर। और दूसरी चीज, आपने पानी कौन सा लिया था? टैप वाटर, नॉर्मल वाटर, मिनरल वाटर, रेगुलर वाटर, डिस्टिल्ड मैम वाटर? टैप वाटर, टैप वाटर। I'll explain why. Okay, क्यों नहीं बना वो भी एक्सप्लेनेशन दूंगी मैं। फाइन, ठीक है? चलो Yes, पहले एक बार स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन आंसर मैम लेवन स्पॉटलाइट पे है मैम। यस अब मैम। हमने spotlight पे हाँ रुको, थोड़े मिनट्स के लिए रह जाएगा तो कोई इश्यू है? चलो टेक्सचुअल मैम। एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम पहले। I'm going to share my screen here. Question number 1. कौन बताएगा? क्लासिफाई मैम द पेज चेंज। नंबर 65 ना। एक मिनट, सब टर्न बाय टर्न, ठीक है? हैंड रेज करो, आई विल टेल यू दैट हु इज गोइंग टू टेक। हाँ, पेज नंबर 65। मैम स्क्रीन ब्लर दिख रही है। मैं बोलने ही वाली हूँ, सो डोंट वरी। आपके पास टेक्स्ट बुक है, मैं भी क्वेश्चन पढ़ने वाली हूँ, सो डोंट वरी, है ना? मैं मेरे रिलेटिव्स के घर आई हूँ ना, तो फिर मेरे पास अभी टेक्स्ट बुक नहीं है। मैं क्या बोलूँ बेटा, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, अगर टेक्स्ट बुक नहीं भी है तो आई एम गोइंग टू रीड दैट क्वेश्चन। पहले से ही मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे देती हूँ कि ब्लर है तो थोड़ी देर रुक जाओ, अगर नहीं है तो मैं शेयर करूंगी, अगर वो भी नहीं हो रहा है तब भी हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। फाइन, अब एक और चीज। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन दिया। यस बेटा। मैम केमिकल चेंज। फोटोसिंथेसिस, व्हाई? मैम वो रिवर्सिबल नहीं है, दैट्स व्हाई। सिर्फ रिवर्सिबल नहीं है इसलिए, या फिर दूसरा कुछ? मैम उसकी साइज, कलर और वो कुछ नहीं। फोटोसिंथेसिस। अच्छा मुझे ये बताओ दिया कि फिजिकल और केमिकल चेंज में सबसे बड़ा अगर कोई पॉइंट नोट कर सके तो वो कौन सा है? रिवर्सिबल एंड इनरिवर्सिबल। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट। नहीं, स्टेट नहीं। इफ एनी न्यू सब्सटेंस विल फॉर्म देन दैट इज केमिकल चेंज। अगर नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता तो फिजिकल चेंज, है ना? उसका स्टेट यानी शेप, साइज, ऐसी कोई चेंज हो रहा है वहां पे चेंजेस, सो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू कंसीडर इट्स एज अ फिजिकल चेंज ओनली। बट अगर वहां पे वो कंपोजिशन सेम ही रहेगी, पानी में से आइस बन गया, आइस में से वेपर बन गई, बट फिर भी वो मॉलिक्यूल्स तो सेम ही है, H2O, है ना? स्टेट, लिक्विड में से सॉलिड या सॉलिड में से लिक्विड, तो वहां पे वो केमिकल चेंज नहीं है। कौन सा चेंज है वो? फिजिकल चेंज। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस यानी जो सनलाइट हम ले रहे हैं, पानी और क्या ले रहे हैं बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? ये तीनों अलग अलग फॉर्म में जा रहे हैं प्लांट के अंदर। सनलाइट अलग है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग है, और वाटर हम जो ग्राउंड फ्लोर से ले रहे हैं, ये तीनों मिलके उसको कन्वर्ट करने वाले किसमें? स्टार्च में। तो ये प्रोसेस के एंड में सबसे नया सब्सटेंस कौन सा बना? स्टार्च, यानी फूड, खाना बना। क्या कार्बन डाइऑक्साइड खाने जैसा दिखता है?
क्या सनलाइट खाने की तरह दिख रही थी या पानी? नहीं। सो यहाँ पे एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस कौन सी नई प्रोडक्ट तो नहीं बोल सकते, बट एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस हमें कौन सा नया एक सब्सटेंस मिला, सो दैट इज फूड। और फूड, प्लांट का फूड, हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? स्टार्च, है ना? तो दिस स्टार्च इज कंप्लीटली न्यू सब्सटेंस फॉर अस, कैन वी से दैट? यस। So that's why it's known as chemical change. चलो सेकंड कौन बताएगा? dissolving sugar in water. What it? Unmute yourself. हाँ, ये तो आपका फेवरेट चैप्टर है, राइट? यस मैम। मैम केमिकल चेंज। Yes, dissolving sugar chemical change है. Are you Ma'am, sure? Can I tell Prasanna? Yes बेटा, मैम प्रश्न. फिजिकल चेंज मैम, सॉरी मैंने थर्ड नंबर का बोल दिया गलती से। ओके, बता बेटा प्रश्न, आप बताओ क्यों नहीं? मैम मिल तो गया आंसर केमिकल चेंज। सॉरी मैम थर्ड का आंसर बोलूं? नहीं नहीं, सेकंड का ही बोलो, मुझे जस्टिफिकेशन चाहिए कि केमिकल है तो क्यों, फिजिकल है तो क्यों. मैम मैं बताऊं क्लासिफिकेशन? हाँ, मैम बिकॉज इट इज मॉलिक्यूल्स आर सेम मैम, वाटर तो वाटर ही रहेगा ना। वाटर तो वाटर रहेगा, बट शुगर अंदर डिसॉल्व हो जाएगी ना. यस मैम। कलर चेंज। रहेगा ना। तो फिर उसको क्या बोलोगे? देखो, ये पॉइंट बहुत अच्छे से नोट कर लो. फिजिकल चेंज के लिए और केमिकल चेंज के लिए, फिजिकल चेंज में किसी भी ऑब्जेक्ट सब्सटेंस का शेप चेंज हो सकता है, या फिर उसकी साइज में भी चेंज हो सकता है, उसके कलर में भी पॉसिबिलिटी है कि चेंज हो. बट कलर वाला एग्जांपल आप कहाँ पर देखोगे? दोनों केस में देखोगे, फिजिकल और केमिकल दोनों में. और फिर उसका स्टेट भी चेंज हो सकता है. स्टेट यानी सॉलिड से लेके लिक्विड या फिर गैसियस, राइट? बट यहाँ पर एक ही पॉइंट याद रखना है, न्यू सब्सटेंस विल फॉर्म. अब एक एक एग्जांपल लेते हैं. शेप यानी अब समझ लो कि आइस क्यूब का शेप कैसा होगा, उसको मेल्ट कर दिया तो वो लिक्विड हो जाएगा, शेपलेस. ठीक है, हाँ या ना? यस। बट तो वो अभी भी H2O से ही बना. सेकेंड, साइज. मेरे पास एक इतनी साइज की लकड़ी थी जिसको मैंने काट दी क्योंकि बहुत लंबी हो रही थी, तो अब इसकी साइज कम हो गई, बट अभी भी वो लकड़ी यानी सेल्यूलोज से ही बनी है लकड़ी, है ना? सिर्फ उसके साइज में चेंज हो गया, तो ये भी फिजिकल चेंज है. ठीक है, फिर हो गया कलर. ओके, अब कलर के लिए कौन सा एग्जांपल हम लेंगे? पानी के अंदर आपने पेंट करने के लिए कोई कलर, ब्रश को साफ करने के लिए वो ब्रश यहाँ पे डिप किया, है ना? फिर एक एग्जांपल है स्टेट. हमने चॉकलेट को मेल्ट कर दी क्योंकि हमें मिल्क शेक बनाना था, सॉलिड में से उसको लिक्विड बना दी. ओके, तो ये भी कौन सा एग्जांपल हो गया? फिजिकल चेंज. बट अभी भी है तो वो चॉकलेट ही लिक्विड फॉर्म में, बस जिसको हमें स्ट्रॉ डाल के पी लेना है, बस, है ना? फाइन. मैम लाइक आयरन, ये हो गई. आयरन को मेल्ट करते हैं ना हम लोग, तो आयरन वाला एग्जांपल भी फिजिकल चेंज ही है. बट अगर आयरन के ऊपर जंग लगती है, रस्टिंग होता है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज. व्हाई? तो उसके लिए एक और एग्जांपल, ये कैरेक्टरिस्टिक्स अपने बुक में लिख लो बेटा. ये ध्यान में रहना चाहिए, मैच करो. जब भी आपको कोई एग्जांपल देंगे आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कि ये फिजिकल है, तो आप उसको कौन से बेसिस पे जज करोगे? देखो, कोई भी क्वेश्चन आपके बुक के बाहर का नहीं होगा. ये कंडीशन अप्लाई वहां पर दी गई है आपके बुक में, है ना? कंडीशन अप्लाई कि अगर ये है तो फिजिकल, ये है तो केमिकल चेंज. ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? बर्निंग ऑफ कोल. कोल को बर्न करोगे तो क्या होगा? मैम ये तो सिंपल है एकदम। मैम एकदम सिंपल है। हाँ, क्या है बर्निंग ऑफ कोल यानी क्या? केमिकल मैम मैं चेंज। बताऊं? हाँ बताओ। मैम केमिकल चेंज, क्योंकि वो सब्सटेंस ही चेंज हो जाए जब हम बट कोल क्या को बर्न बनेगा? करें। मैम ऐश, मैम राख बन जाएगी मैम इसका। तो कोल ऑलरेडी राख जैसा ही होता है ना, ये अलग होता है? नो मैम अलग होता है, वो वो सॉलिड अलग होता है। करेक्ट, कोलसा इज डिफरेंट थिंग. ओके, और जब आप, बट कोलसा बनता भी कैसे? अगर आप लकड़ी को जलाओगे तो कोलसे की तरह ही बनती है ना बेटा लकड़ी, हाँ या ना? यस मैम।
यस दोनों मैम। फॉर्म अलग है या नहीं? हाँ, बट ये केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि वहां पे आप जो भी मेटाबॉलिज्म अंदर हो रही थी उसको आप पूरा बंद कर रहे हो। ओके, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। मैम तारा, कैनेडल तारा आप बताओ बेटा। मैम फिजिकल चेंज। क्यों फिजिकल चेंज? मैम मैम बिकॉज वो रिवर्सिबल नहीं है। रिवर्सिबल नहीं है या रिवर्सिबल है? मैम ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल है बेटा, फिर से आप उसको मोल्ड कर सकते हो। अगर आप समझ लो कि आपका फेवरेट सपोज कोई शेप है, मिनियन के शेप में आपको कैंडल बनानी है, ठीक है, आप क्या करोगे? मिनियन का मोल्ड लोगे, ये जो आपके घर में ऑलरेडी हमारे पास जो टिपिकल कैंडल होती है उसको हम पिघलाएंगे, फिर से उसी मोल्ड में हम लिक्विड फॉर्म में भर देंगे, तो जैसे ही कंडेंस हो जाएगी तो वो मिनियन के शेप में चली जाएगी, है ना। तो बट वो है तो वैक्स ही, वही सेम वैक्स है ना, सिर्फ स्टेट चेंज हुआ, सॉलिड टू लिक्विड। नेक्स्ट, बीटिंग। हाँ, प्रश्न बताओ बेटा, बीटिंग ऑफ एल्यूमिनियम टू मेक फॉइल। मैम फिजिकल चेंज। हाँ, क्यों? मैम क्योंकि उसको उसका वो शेप और साइज सब कुछ चेंज हो जाता है इसलिए। हाँ, मतलब शेप और साइज, यानी एल्यूमिनियम जो है वो एक टाइप की क्या है बेटा, मेटल है, उसको हम फॉइल में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। बीट यानी बीट के पूरा, बीट यानी हम मार नहीं रहे, कुछ ऐसा ही है, टैपिंग है ना, टैपिंग कर रहे हैं, हैमरिंग कर रहे हैं, बट फिर भी वो तो है ही एल्यूमिनियम, है ना, कोई चेंजेस नहीं हो गया एल्यूमिनियम के साथ, राइट। नो मैम। डाइजेशन मैम ऑफ, ये तो आपने दिया था मैम, आपने बताया था ये वाला तो। करेक्ट, डाइजेशन ऑफ फूड। मैम केमिकल चेंज। क्यों बेटा? हर्ष, हर्ष केमिकल चेंज क्यों? ध्वनि ने मैम बताया ध्वनि केमिकल चेंज, तो उसका रीजन क्या है हर्ष? मैम बिकॉज है ना, उसको हम वापस से उसके शेप में नहीं कर सकते। शेप नहीं बेटा, एक बार वो डाइजेशन रखो उसके सॉरी मैम, उसको उसके फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में नहीं कर सकते हम उसको। करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड, ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते, है ना, इसलिए। मैम और दूसरा भी Yes, रीजन ma'am. है मैम, क्योंकि वो एनर्जी में चेंज हो जाएगा मैम। राइट, वेरी गुड, ओके। अब चलो सेकेंड अंश आप बताओगे, सेकेंड क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स, फर्स्ट वाला, कटिंग ऑफ अ वुडन लॉग। अगर मैम वुडन आपने लॉग को अभी कट करेंगे बेटा तो वो केमिकल चेंज है। अंश, गेट करेक्ट। ट्रू। ट्रू कैसे हुआ बेटा? ये केमिकल चेंज है क्या? अभी अभी तो मैंने बताया, सिर्फ कट करोगे आप तो वो केमिकल चेंज कहाँ से हुआ? कोई नया सब्सटेंस बन रहा है? लकड़ी आपकी सिर्फ छोटी हो जाएगी बस कट करोगे तो। ओके। मैम ये फिजिकल चेंज और ये फॉल्स। एक मिनट अंश, फिर से पढ़ो बेटा, क्वेश्चन फिर से पढ़ो तो जरा। ये Cutting a log of wood into pieces is a chemical change. हाँ, आप समझाओ मुझे क्वेश्चन क्या है पहले। Ma'am, if we cut a wood into pieces, is it a chemical change? अब बताओ मुझे आंसर। False. तो पहले क्यों ट्रू बताया? अगर ये लकड़ी है हमारे पास, ठीक है, अगर उसको हम कट करेंगे, सिर्फ कट ही कर रहे बेटा, तो ये सिर्फ छोटे साइज में होने वाली है ना। क्या ये ऐश में कन्वर्ट हो रही है? क्या किसी और सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रही है? ये No. नहीं, तो ये क्या है, केमिकल या फिजिकल चेंज? सेकेंड, Physical. यस, सेकेंड हर्ष बताओ बेटा, सेकेंड वाला बताओ। नेक्स्ट वेदांत और जिया आप बताओगे। मैम मैम ये फॉर्मेशन ऑफ ओके मैम। लिखा है वो क्या है मैम? फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर है बेटा, मैन्योर, मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज अ फिजिकल चेंज। फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर, मैन्योर क्या है बेटा? चलो कौन बताएगा मैन्योर मींस व्हाट? वेदांत बताओ। मैम बताओ। हाँ बताओ। मैम फर्टिलाइजर। मैन्योर और फर्टिलाइजर के बीच में कोई डिफरेंस होता है? यस मैम। यस, बताओ बेटा क्या डिफरेंस है? मैम फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन और पोटेशियम और
और कुछ वो होता है, और जो mineral होता है उसको मैं पाउडर और इस चीज़ से परफेक्ट आंसर। मैम इसकी आवाज म्यूजिक जैसी आ रही है। फर्टिलाइजर में एनपीके यूज होता है और केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, और मैन्योर में नहीं होते केमिकल सब्सटेंस। अब बताओ कि मैन्योर पहले तो क्या है, नेचुरल ऑर्गेनिक वेस्ट से बना हुआ होता है, राइट? तो अगर नेचुरल ऑर्गेनिक वेस्ट डिकम्पोज करके बनाते हैं, राइट, तो वो केमिकल कंपोजिशन ही, केमिकल चेंजेस ही होगा बेटा, राइट? क्योंकि नया सब्सटेंस बन रहा है, वो है ह्यूमस, योर मैन्योर। यस, तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स या ट्रू? फॉल्स मैम, फॉल्स। मैम फर्टिलाइजर्स में है ना नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। एनपीके दोस आर द कॉमन पार्ट्स, ओके। जनरली वो प्लांट्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए सबसे ज्यादा एनपीके होता है। ओके, नेक्स्ट वन, आयरन पाइप्स। वेदांत आप बताओ। मैम यूरिया इज आल्सो अ टाइप ऑफ मैन्योर, सॉरी, इज आल्सो वन टाइप ऑफ फर्टिलाइजर और दैट कंपोनेंट। ऐसे बहुत सारे हैं, बट एनपीके कॉमन है, राइट बेटा? वेरी गुड। यस वेदांत बताओ। क्यों नहीं आता बेटा? मैम जस्ट अ सेकंड, मैं रीड कर रहा हूँ। ओके मैम कहने से रीजन के साथ। वेदांत, हु इज वेदांत? वही बताएंगे। आयरन पाइप को जिंक से कोट किया जाता है ताकि उसके ऊपर रस्टिंग ना हो। इज इट ट्रू और फॉल्स बेटा? मैम कहने से जिया। नो। वेदांत? बेटा क्या सोच रहे हो आप? वेदांत अगर नहीं पता तो बता दो बेटा, आई डोंट नो, नॉर्मल सी बात है। जिया बताओ, चलो बेटा आंसर बताओ। मैम ट्रू। राइट, क्यों बताओ अभी? वेदांत सुनो, क्यों? मैम मुझको रीजन बताना है। रीजन के साथ ही आंसर बताते हैं ऑलवेज। मैम कैन आई से? यस, बिकॉज मैम जिंक जो होता है वो उसमें सब्सटेंस होता है जो रस्ट नहीं लगने देता। तो जब जिंक आयरन उसमें सब्सटेंस नहीं होता, जिंक खुद ही एक ऐसा मेटल है जिसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होती। ओके, परफेक्ट आंसर, बट उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगी। यस। ओके चलो नेक्स्ट, आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंसेस। इज इट ट्रू? तारा? मैम फॉल्स। क्यों बेटा? मैम बिकॉज आयरन के ऊपर ही रस लगता है अगर वो पुराना हो जाता है। करेक्ट, आयरन इटसेल्फ नॉट, इट्स द रस्ट, है ना? वो खुद से रस्ट नहीं है। मितवा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। यस मैम। मैम ट्रू। No ma'am, false. It's a chemical change beta? No ma'am, it is physical change. Condensation of steam, यानी से form change हो रहा है, right? So it's a physical change, correct? Next, दिया बताओ बेटा, fill in the blanks. Carbon dioxide is passed through calcium carbonate. And what is it? Carbon dioxide passed through the lime water, it turns into milky color. What is the milky color? Calcium carbonate, correct? Second chemical name of baking soda. रुतवा, yes बेटा, रुतवा बताओ। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन नहीं बोलते उसको, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, फाइन बेटा।
करेक्ट करेक्ट। नेक्स्ट कौन बताएगा? हर्ष बताओ। Two methods by which rusting of iron can be prevented. मैम मैं बोलूं प्रसन्न? मैम कलरिंग। कलर यानी पेंट कर लो उसके ऊपर या फिर? यस मैम। मैम कलरिंग या फिर मैम सिंकिंग मैम। मैम स्टिकिंग ऑफ व्हाट? हाँ ये मैम स्टिकिंग ऑफ मैम वन टाइप ऑफ मेटल मैम। स्टिकिंग नहीं बोलते उसको, उसको बोलते हैं लेयरिंग, प्लेटिंग, ये सारी चीजें। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन यानी आयरन के ऊपर जिंक को कोट करना, है ना? जिंक को कोट करना मैम, जिससे रस्टिंग स्टॉप हो जाए। मींस वो थोड़ी बहुत प्रिवेंट हो जाए। करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। यस मैम। या फिर ऑयलिंग भी कर सकते हो, है ना? वो ma'am, चूना होता है हमारा आयरन का, तो वो कैसे आवाज करता है, तो ऑयलिंग करवा दो तो बंद कर देगा, स्मूथ हो जाता है। Yes. स्मूथ हो जाता है। Then changes in which only which property? Yes, Diya. मैम फिजिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, physical properties of substance can change. बेटे किस चीज में, कौन सी प्रॉपर्टी में आप चेंज करोगे तो हम बोल सकते हैं कि वो सब्सटेंस में केमिकल चेंज हुआ है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो वहां पर लिखी है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी? तो हमें लिखना है क्या बेटा? शेप, साइज एंड स्टेट, है ना? प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। देन नेक्स्ट कौन बताएगा? मंजर बताओ बेटा, आप मंजर। यस बेटा। Changes in which new substance formed? Simple, chemical change. Yes, ma'am, chemical. Next part, baking soda is mixed with the lemon juice. Bubbles are formed. What type of change? And why? Explain. मैम वाई तो नहीं बोल सकता, पर आंसर बोल दूं? हाँ मैम दिस इज केमिकल चेंज। हाँ, तो अगर केमिकल चेंज है तो आप क्या बोलोगे? केमिकल चेंज की डेफिनेशन क्या है बेटा? न्यू सब्सटेंस फॉर्म, कंडीशन अप्लाइड। तो यहाँ पे नया सब्सटेंस बन रहा है, कौन सा बन रहा है या नहीं? पहला तो अगर बेकिंग सोडा को आपने लेमन जूस में डाला तो बबल्स हो गए। क्यों? क्योंकि वहां पे गैसेस रिलीज हो रहे हैं, और गैस और हीट की रिलीज का मतलब क्या है? वंस अगेन केमिकल चेंज। मैंने आपको एक यहाँ पे टेबल दिखाया था बेटा, अगर याद हो तो। हाँ, वहां पे लिखा था लेफ्ट साइड पे केमिकल चेंज, राइट साइड पे फिजिकल चेंज। ओके, और उस पे लिखा था अगर गैस रिलीज होते हैं या फिर लाइट रिलीज होती है या हीट रिलीज होती है, व्हाट इज दैट? केमिकल चेंज। तो यहाँ पे देखो गैस रिलीज होगा, लिखा है वहां पे कि बबल्स फॉर्म हो गए। ओके, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज केमिकल। यस वनित बोलो। मैम सेकंड फिफ्थ वन का ना? यस बेटा बोलो। मैम मैं फिजिकल वाला बता सकता हूँ मैम। ठीक है मैम, वो आपने मिनियंस वाला एग्जांपल दिया था ना, वही। यस बेटा बोलो बोलो। यस मैम, हम उसको फिजिकल चेंज कह सकते हैं मैम, क्योंकि वो हम पहले बर्न करके उसको सेकंड फॉर्म में ला दे तो फिर बर्न करके फिर से उस फॉर्म में ला सकते हैं मैम, और दोनों सब्सटेंस तो एक ही रहेगी। ठीक है, बट कैंडल के अंदर केमिकल चेंज कौन सा होता है? वो भी बहुत ही इजी है। अगर आप सोचोगे तो वहां पे कौन कौन सी प्रोसेस होती है? मैम कैन आई? हाँ बेटा बोलो बोलो। मेल्टिंग ऑफ वैक्स। मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज? फिजिकल चेंज। हाँ, बट केमिकल चेंज का एक एग्जांपल बताओ उसी केस में। मैम मेल्टिंग ऑफ आयरन। बर्निंग ऑफ वेपर्स ऑफ वैक्स। मैम मेल्टिंग ऑफ मैम आयरन। कैन आई? नहीं बेटा, सेम ही क्वेश्चन में बता रहे हैं। हाँ बोलो। बर्निंग ऑफ वैक्स इज केमिकल चेंज। करेक्ट, बर्निंग बेटा। मेल्टिंग अलग है, मेल्टिंग यानी सिर्फ सॉलिड वैक्स में से वो लिक्विड यानी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगी, दिया। ठीक है बेटा, बट जब हम उसको बर्न करते, जलाते, जैसे लकड़ी जलाते हैं, राइट, यानी जलाना मतलब कि आप देखोगे कि ऊपर से ब्लैक कलर की फ्यूम्स निकलेगी, वेपर निकलेगी, दैट इज अ न्यू सब्सटेंस, राइट, दैट वी कैन से इट्स अ न्यू सब्सटेंस एंड दैट्स व्हाई इट्स नोन एज केमिकल चेंज। ऐसा एक और एग्जांपल हमें स्टडी करना है जिसमें हम फिजिकल और केमिकल दोनों चेंजेस देख सकते हो। चलो कौन बताएगा? मैम पता नहीं चल रहा मैम। अच्छा, एक ऐसा एग्जांपल जिसमें फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों हो। यस बेटा दिया।
Ma'am, if we roll a dough into a shape, then we can reverse it. Then it's a physical change. And if we cook that shape, then it's a chemical change. अच्छा, इसी एग्जांपल को लेके फिर से वही डिस्कस करते हैं। जैसे हमने डो बना दिया, नीड कर दिया है ना, उससे छोटे छोटे बहुत सारे लुए बना दिए, अगर फिर से कंबाइन कर लेंगे तो वही शेप में चला जाएगा। ओके, वो बोल सकते हैं कि फिजिकल चेंज है। बट अगर उससे हमने रोटी पका ली, ठीक है, तो वो हम क्या बोल सकते हैं? केमिकल चेंज है ना, क्योंकि हमने पकाई है उसको। वी आर गोइंग टू प्रोवाइड दैट हीट। हाँ बेटा, धारा, अंश। Yes, ma'am. Ma'am, if we put the water in the rocks in the water, the quantity of the water will increase. That is what physical change or chemical change. But what about chemical change, Ansh? Ma'am, can I try? Yes, of course. When LPG comes out of a cylinder and it converts into liquid gaseous, then the Very good, very good, very good. chemical change will occur when gas burns in air. Correct, very good example. Perfect. Okay, चलो next question कौन बताएगा? Setting of chord. Ma'am, can I? Ma'am, can I? Yes, Dara. Ma'am, the setting of curd is a chemical change because curd cannot be turned back into the milk. सिर्फ रिवर्सिबल इरिवर्सिबल मत बोलो बेटा, बट ये बोलो कि आपका कर्ड बना ही किससे है? वी आर गोइंग टू टीयर दैट मिल्क। अब मिल्क नहीं रहेगा, वो कर्ड नया सब्सटेंस है, फिर से वो मिल्क नहीं बनने वाला। दोनों अलग सब्सटेंस है, मिल्क भी और आपका कर्ड भी, है ना। वहां पे बैक्टीरिया लैक्टोज को कट करके एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड अलग है और लैक्टोज अलग है। लैक्टोज इज वन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लैक्टिक एसिड इज वन टाइप ऑफ एसिड, है ना। तो दैट्स व्हाई ये पूरा डिस्क्रिप्शन में बेटा सिर्फ रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के बेस पे, शेप एंड साइज के बेस पे मत उसको जज करो। नेक्स्ट कौन बताएगा? यस, वेरी वो गुड। लोग उसको सॉरी भी बना देते हैं। ओके, हाँ, मैम इसके ऊपर एक प्रॉब्लम भी आप बोल रहे हो ना, लैक्टोसिस। यस बेटा, बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Ma'am, can I? हाँ बेटा, बोलो। Burning of food produce ash and smoke, so this property bring new substance, so it is a chemical change. Okay. Ma'am, can I try, Rutva? Yes बेटा। Wood plus oxygen is coal plus carbon dioxide plus heat plus light. Very good. What is that chemical reaction, right? So we can see that at the end of this chemical reaction, new substance will form. Okay, then next. हाँ, बोलो बोलो बेटा, दिया बोलो। Ma'am, 7th one or 8th one? 8th one. Say 8th one. Ma'am, this could be done by the process of crystallization. हाँ, बताना है हमें पूरा। We have to take water in a beaker and then boil it. Then we have to add copper sulfate into that water and stir it. Then we have to take that water in a beaker and cool it down. And then we have to fix a string so that crystals form on that string. करेक्ट। अगर ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स से पूछा जाए तो क्रिस्टलाइजेशन वाला एक्सपेरिमेंट पूछा जाए तो आपको पता है कि कैसे लिखना है, राइट? We are going to start with the crystallization process. We are going to form the crystal of copper sulfate. Then उसके लिए क्या चाहिए? Copper sulfate solution, burner, matchstick चाहिए, right? You are going to prepare the solution, heat it. We are going to leave it for a few days. For that, we'll require pencil and thread, and then we'll see this crystallization. Okay? Why? Because saturated amount of that extra copper sulfate will get converted into crystals. Okay? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बताएगा? Ma'am, can I, Rutva? यस बेटा।
painting prevents the iron gate from coming in contact with oxygen and moisture. That's it. बस उतना ही बेटा. Yes. कौन सा क्वेश्चन के लिए आपने आंसर बताया अभी? Question 9. पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट. सिर्फ उतना ही होगा. रस्टिंग पेंट से क्या हो जाएगा, बट क्या प्रिवेंट कर लेंगे हम, वो तो बताओ. अगर आप ये इतना लिख के छोड़ दोगे ना, कोई इश्यू नहीं है. ऐसा नहीं कि आंसर रॉन्ग है, बट बस इतना है कि वो लोग एक्सप्लेन करे बेटा. डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, व्हाई, जस्टिफाई, गिव रीजन. वो आपको पूरा क्लियरली क्वेश्चन बता रहे, और फिर भी आप एक ही सेंटेंस में अपना आंसर खत्म करोगे तो वो आपको एक ही मार्क्स ही मिलेगा, 1 मार्क मिलेगा. ठीक है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मोर देन दैट. अगर एक ये वन सेंटेंस के यहाँ पे आंसर्स नहीं है बेटा. ठीक है, एक्सप्लेन और डिस्क्राइब है, तो क्या डिस्क्राइब करोगे आप? रस्टिंग रोक देगा, ऑक्सीजन और उसके डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आएगा. Can I tell in detail? यस बेटा, प्लीज. Yes, ma'am. For rusting, the presence of both oxygen and water is required. The coat of the paint prevents contact of iron with oxygen and thus prevents from rusting. ओके, चलो फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बताएगा? मैम मैंने खुद से बना के बोला है, थोड़ा सा ऐसा मतलब धीरे धीरे. कभी भी आपके वर्डिंग से कोई इशू नहीं है ना. बस लॉजिक सही होना चाहिए, सिर्फ डेफिनेशन में वर्ड टू वर्ड. यस बेटा, प्लीज. Yes, ma'am. Ma'am, in the case of sorry, ma'am. In the case of coastal areas, it is full with oxygen. आपकी आवाज हर्ष, थोड़ी आवाज इंक्रीज करो बेटा. Yes, ma'am. 1 minute. Yes, ma'am. The okay. rusting happens faster in coastal areas because it is fulfilled with air and moisture, one type of water. And in coastal areas, the quantity of moisture is present higher in the air than in Very good. deserts. That's why the iron objects rust faster in coastal areas than in deserts. करेक्ट. ठीक है, वहां पे क्यों ज्यादा है? क्योंकि मॉइस्चर ज्यादा है. क्यों मॉइस्चर है? क्योंकि पानी का इवेपोरेशन होके वो वहीं पे एयर पे है. बट डेजर्ट में क्या होगा कि वो इवेपोरेट होके ड्राई आउट हो जाएगा. और दूसरा चीज क्या है कि सॉल्ट की इफेक्ट भी होती है वहां पे. कोस्टल रीजन यानी सॉल्ट है ना, तो सॉल्ट की. बट सॉल्ट यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर रहे. हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या है? डिस्कस द इफेक्ट ऑफ व्हाट बेटा? Iron, ma'am. Iron. परफेक्ट एग्जाम. यस बेटा, आंसर. ओके, नेक्स्ट कौन बताएगा? मैम आप अभी क्या करा रहे हैं? बीच में नेटवर्क मेरा चला गया था तो वॉइस क्रैक हो रही थी. तो मैं मतलब आप क्या कौन सा क्वेश्चन करा रहे हैं? 11th. चलो बताओ बेटा, 11th का आंसर बताओ. जो किचन में हम गैस यूज करते हैं, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस. ओके, और सिलेंडर में भी. सिलेंडर इट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड. व्हेन इट कम्स टू सिलेंडर इट बिकम्स द गैस ए, देन वी आर गोइंग टू बर्न. जैसे दिया ने आंसर किया. हाँ बेटा बोलो. सेम ही क्वेश्चन है. ठीक है, सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड बनाया है और कुछ नहीं. मैम कैन आई? यस बेटा, प्लीज. मैम सेकंड प्रोसेस बी. हाँ बोलो बोलो. इज अ केमिकल चेंज. हाँ, ओके. Ma'am, can I say why it is chemical change? Yes बेटा, please. 1-8. Ma'am, because it changes the form, ma'am. Changes into? Ma'am, form, ma'am. State change कर रहा है वो. क्यों form बेटा? State अलग चीज है. State यानी solid to liquid, liquid to gases and gases to likewise. वो state हो गया है ना, कि वो solid है या liquid है, वो state हो गया. वहां पे कोई form change नहीं है. Form यानी क्या? या फिर आप बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा वो सब्सटेंस चेंज हो जाएगा. परफेक्ट आंसर है आपका. ठीक है, सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन 12th. मेरे को काम है? नहीं बेटा, 12th जिसको भी बताना हो बता सकते हो. मैम कैन आई ट्राई? हाँ बोलो. हाँ बोलो. मैम थर्ड, बोथ प्रोसेस A and B are chemical changes. फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द आंसर बेटा.
Why A and B? Explain. Anaerobic bacteria digest animal waste and produce biogas. है ना? Change A. The biogas is then burned. Change B. And the following statements pertain to this changes. Choose the correct option. So change A is chemical, change B is chemical. We are having C option. A and B both are chemical and none of them are chemical. So your answer is A and B both are chemical, right? Yes, because here you can see that biogas is completely new substance formed with the help of which process? बैक्टीरिया ने डाइजेस्ट किया किसको? एनिमल वेस्ट को और बाकी सारे प्रोडक्ट्स को और बायोगैस बनाया। तो ये यहाँ पे नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ, तो ये केमिकल चेंज हो गया। किसी भी चीज को बर्न करोगे तो वैसे भी नया सब्सटेंस फॉर्म होने वाला है, सो दैट्स व्हाई दैट इज आल्सो केमिकल चेंज। मैम ठीक है? यस बेटा। मैम हमारे स्कूल में मैम चैप्टर नंबर 4 चल रहा है मैम, मतलब खत्म होने की है। ठीक है, हीट ना? यस मैम। ठीक है, फाइन बेटा। अब नेक्स्ट हमें कौन सा लेना है? मैम चैप्टर नंबर 12 लेना है। ये कौन बोला थी? मैम अपने 4 करवा दिया मैम। क्या बेटा? अपने 4 चैप्टर करवा दिया है हीट वाला। हाँ मैम तब मैं नहीं था इसलिए। अच्छा ऐसा है, कोई बात नहीं, अगर आपको कोई भी डाउट हो चलो अब। हाँ कौन सुना रहा है? हमारे स्कूल में चैप्टर 8 शुरू हो गया। अच्छा ठीक है दक्ष, रोना मत बेटा, एक साथ हम सारे तो नहीं कर पाएंगे ना, है ना? मैं रोने रहा, सिर्फ कह रहा हूँ। हाँ मैं समझ गई कि आप कह रहे हो। ठीक है चलो ठीक है, टर्न बाय टर्न। हाँ जो भी लोग हैंड रेज कर रहे हैं बेटा बोलो। हाँ प्रसन्न बोलो बेटा। अच्छा हर्ष बोलो। यस मैम, हमारे स्कूल में सेकंड चैप्टर अभी खत्म हुआ है और शायद से ना हमारे स्कूल में चैप्टर ये वाला जो था ना चैप्टर में कौन सा चैप्टर है वो वाला चैप्टर अभी स्टार्ट होने वाला है। ओके जिया आपके केस में क्या है? हाँ मितवा जाओ बेटा। चलता है मैम वो तो हैंड रेस रह गया। ठीक है। हाँ हर्ष आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, थोड़ा जोर से बोलो या फिर। मैम हमारे स्कूल में रैंडम चैप्टर्स चलते हैं, दैट्स व्हाई कोई भी चैप्टर आ जाते हैं, इसलिए अभी सेकंड चैप्टर चलाया। मतलब एग्जाम में कोई टेंशन नहीं है। वेदांत बोलो। वेदांत बेटा ध्यान का है। हाँ आपने बहुत ही इजी सा क्वेश्चन का आज आंसर नहीं दिया है, तो ये पॉइंट से क्या पता चलता है बेटा? आप थोड़ा देखोगे कि ये मुझे क्यों नहीं समझ आया, है ना? अगर नहीं आया तो आप मुझे पूछ सकते थे, राइट बेटा? बहुत ही मस्त चैप्टर था। ध्वनि आपका चैप्टर फिनिश हो गया, आप क्या करेंगे बेटा? हाँ जिया ठीक है। वेदांत प्लीज मेक श्योर बेटा आज जो समझ में नहीं आया एक बार देखो, फिर भी नहीं आया तो हम फिर से वो ले सकते हैं, है ना? ठीक है ओके। कोई क्वेश्चन है वेदांत? नहीं मैम क्वेश्चन नहीं है मैम, एक चैप्टर मैम हमारे स्कूल में चलने वाला है, अभी मैम ने क्लियर नहीं किया लेकिन चैप्टर 8 कह रहे थे मैम। ठीक है कोई बात मैम एग्जाम में नहीं आने वाला है तो आप कभी भी ले सकते हैं। ठीक है हमारे स्कूल में चैप्टर 8 शुरू हो गया। शुरू हो गया ठीक है। एग्जाम में बेटा अंश टेंशन नहीं लेना है ना? ठीक है जिया बोलो। मैम आई एम हैविंग वन डाउट। हाँ बोलो बोलो हर्ष बोलो। यस मैम इसी चैप्टर में मैम पेज नंबर बेटा आपका स्पीकर नजदीक लेके बोलो। मैम इसी वाले चैप्टर में पेज नंबर 67 में जो डिड यू नो है, तो मैम उसमें ये जो है मैम उसमें रस्ट क्यों नहीं लगा? ओके रस्ट नहीं लगा, बुक में नहीं दिख रहा होगा बेटा, रुको देख लेते हैं। 67 पेज नंबर राइट? ओके जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ठीक है तो वी कैन स्टार्ट विद रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन नेक्स्ट सेशन राइट? और आपका काम है ये क्वेश्चन आंसर्स लिखना। मैम हाँ बोलो। मैम मेरी एग्जाम कंटिन्यू है तो मैं ना लिखूं तो चलेगा? ना लिखो नहीं बेटा, खत्म होने के बाद लिख लेना है ना, ना लिखना। खत्म होने के बाद लिखूं तो चलेगा? क्या लिखना है हमको? अच्छा ये आयरन पिलर। ओके क्वेश्चन near the Qutub Minar in Delhi stands it's a iron pillar which is more than 7 meters high and the height kilogram and
since last 1600 years, okay, is standing there without having the trusting, okay, it's not getting the trust, will not find out what is Ma'am, I know. it has been examined by scientists for what बेटा, कि उस टाइम पीरियड में भी इंडिया कितना उसके पास कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी, बट हाँ चलो इसके पीछे रीजन क्या है, हाँ दैट इज अवर पॉइंट। मैम आप ऐसा हो तो 14 नंबर का चैप्टर करा देना, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। अच्छा वो अभी आपका फेवरेट है बेटा, हर जस्ट सेकंड ना। मैम मेरा भी फेवरेट वही है, मैम मेरा भी वही फेवरेट है इलेक्ट्रिक। अब अभी आपका ध्वनित का फेवरेट फिर से नहीं ले सकते है ना ध्वनित, वरना बाकी सब स्टूडेंट्स मुझ पे चिल्लाएंगे। मैम मुझे भी इलेक्ट्रिसिटी फेवरेट है मैम। अच्छा अभी आपका इलेक्ट्रिसिटी फेवरेट है, ठीक है। पहले ये क्वेश्चन खत्म करते हैं ना, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि उसके ऊपर रस्टिंग क्यों नहीं लगा, है ना, जबकि वो आयरन से बना है, तो क्यों नहीं लगा, कौन बता सकता है? अच्छा मैम क्योंकि उसके अंदर ने ऐसा मेटल यूज किया गया है साइंटिस्ट के द्वारा। हाँ करेक्ट, एक हिंट मैं बता सकती हूँ, फाइन। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टेच्यू बना है वो, है ना, उसमें अगर आपने स्टोरी देखी होगी तो हिस्ट्री ने बहुत बड़ी स्टोरी कवर की है वहां पे, कि वो कैसे सबसे वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रतिमा बनाई गई है ना, क्यों? अगर इसके बारे में कुछ भी जानते हो तो बताओ। मैम उसमें मैम वर्ल्ड के सबसे बेस्ट मेटल का यूज किया गया आयरन का, जिसमें रस्ट नहीं लगता इजीली। ऐसा ये बहुत ही लॉजिकल और सार्केस्टिक आंसर था, है ना, चलो सही है, ये भी थोड़ा सही है पार्शियली। और कौन बताएगा? मैम आप गया कभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? यस बेटा। मैम मैं जाने वाला हूँ मैम कहना है यस बेटा। मैम उसको ऐसे बनाया गया है कि वो कोई भी फ्लड या कोई भी नेचुरल डिजास्टर आए तो वो उसको कुछ नहीं होगा। यस राइट बेटा, परफेक्ट। ऐसी टेक्नोलॉजी बहुत सी इंटरेस्टिंग सी चीजें है ना उसके रिलेटेड। मैम मैंने आयरन पिलर तो मैं 6-7 बार देख चुका हूँ, बिकॉज़ जब मैं गांव जाता हूँ ना तो आयरन पिलर रास्ते में मिल ही जाता है मेरे को। राइट, अब हमारा क्वेश्चन क्या था? बट यस मैम, हमारा क्वेश्चन क्या था? मैम उसमें रस्ट क्यों नहीं लगता? हाँ इसी के ऊपर आते हैं। वहां पर भी सरदार पटेल का जो स्टेच्यू बना है उसमें मिक्सचर ऑफ मेटल है ना, मिक्सचर यानी वो भी प्रोपोर्शन पहले से डिसाइड किया गया, ऐसा हैफिजली यूज नहीं किया है कि अच्छे ग्रेड का आयरन, जैसे आपने बोला बेटा, है ना, अच्छे ग्रेड का आयरन क्या होता है फिर? मैम मतलब वो बहुत ही अच्छा तरीके होते हैं, उसमें केमिकल के द्वारा बहुत ही उसको ऐसा क्लियर बना देते हैं इतना कि वो रस्ट ना ले सके। चलो ठीक है, अंश हमारे साथ इसकी हिस्ट्री शेयर कर रहे हैं। राजपूत डायनास्टी हैज मेड दैट पिलर। चलो ठीक है, 7.5 मीटर लॉन्ग। अब पॉइंट ये है कि जैसे प्लास्टिक में भी ग्रेड होते हैं, फूड ग्रेड प्लास्टिक आता है, अलग होता है, जिसमें आप खाना स्टोर कर सकते हो। हर कोई प्लास्टिक खाना स्टोर करने के लायक नहीं होता, वैसे भी आयरन में भी होते हैं ग्रेड, बट ग्रेड के अलावा इसके साथ ज्यादा से ज्यादा ऑलरेडी क्या मिक्स करके रखा है जिसके साथ वो रिएक्ट करता है? किसके साथ वो रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन एंड वाटर। तो ये जो है वो एक टाइप का और यानी प्योर फॉर्म ऑफ आयरन है, ठीक है, यानी जिसको बोलते हैं, अभी वो सब्सटेंस आपको समझ में नहीं आएगा, बट उसके साथ मिक्सचर होता है बाकी और मेटल्स के, ताकि वो उसके अंदर रस्टिंग ना हो। ऑलरेडी वहां पे ऑक्सीजन आयरन को मिक्स किया है विद हाइड्रोजन, है ना, चांसेस कम हो जाएंगे बाकी मेटल्स के साथ और इसके साथ। दैट इज द ओनली रीजन। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत पहले आ गई थी हमारे इंडिया में, ठीक है। चलो यहाँ तक रखते हैं बेटा, नेक्स्ट सेशन में रिप्रेजेंटेशन इन प्लांट। हाँ बोलो। मैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गए होगे ना मैम, तो 48 वो फ्लोर है उस पर गए हो? किसके ऊपर? मैम 48 वाला फ्लोर के ऊपर गए? नहीं एक्चुअली मुझे विजिट जब करने के लिए मिला था उस टाइम पे वहां पे अंदर कोरोना चल रहा था, तो वहां पे अभी अलाउ नहीं कर रहे थे। तो जो साइड वाला एरिया है, डैम वाला एरिया है, उसके बाजू में वो फॉल है, वाटरफॉल, वो सारी जगह पे ही जा सकते थे, वैसा था। तो वो फ्लोर तक नहीं गया हूं मैम, मैं गैलरी तक गया हूं मैम। मैं भी गई हूं। यस बेटा, प्लीज डिस्क्राइब करो वरीन। मैम हमने वहां पे जाके बुक करवाने गए ना, तो पता चला वहां पे पूरा वो बंद था, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ओके ओके ग्रेट। मैम उधर इतनी फास्ट चलती है ना लिफ्ट, आपको थोड़े ही सेकंड में ऊपर पहुंचा देती है मैम।
यस वो कैलोरी तक मैम। राइट बेटा, राइट। यस मैम, बहुत मैंने fast वन होती है। मैंने एक चैनल पे देखा था मैम, उसमें बहुत सारे लिखे मैम मैम। और उसका कोई हमारे ऐसा पेट में फ्लोर है कुछ जहाँ कुछ से है होता ना है। मैम नर्मदा डैम हम वहाँ से देख सकते हैं मैम, वो कोई Yes, ऐसा exactly. फ्लोर है उस पे। पूरा डैम वहां से, यस मैंने वहीं से देखा है, वहां तक ही देखा एक्चुअली, आगे पॉसिबल नहीं था। और मैम वो मैम उसमें शायद एक म्यूजियम भी है। यस भी मैम। है और एक एक्वेरियम भी है छोटे बच्चों के लिए, और कुछ एनिमल्स का गार्डन भी। जैसा भी है। हाँ, यस मैम, मैंने टूर देखा था मैम Flower उसका। और मैम garden। रात को वहाँ वाटर शो भी होता है। हाँ, वाटर शो भी होता है, लाइट का शो होता है पूरा उसके ऊपर। जैसे कि उसमें मैंने अक्षरधाम में होता है। हाँ, ये लेजर शो कहते हैं मैम उसको। हाँ, लेजर शो भी होता है। ठीक है, जैसे गांधीनगर में भी होता है, अक्षरधाम में कई बार होता है, सूर्य मंदिर में भी कई यस बार मैम, होता मैम है। यहाँ पे ग्रीन मैम यहाँ पे साइंस सिटी में होता है मैम, साइंस पार्क में। यस बेटा, साइंस अभी यहाँ पे नया ओपन हुआ है ना साइंस सिटी में भी, बट अभी तक पब्लिक के लिए अलाउ नहीं किया है। लेट्स सी कब ओपन करते हैं। That's मैम also- मैम एक और है साबरमती मैम, रिवर के पास मैम भी वहाँ होता है। मैं हाँ यस मैम, साबरमती रिवर के पास भी होता है मैम, मैं वही बोलने वाला था। यस बेटा। ओके चलो, आज आपका काम है टेक्सचुअल एक्सरसाइज लिखना। फाइन, टेक्सचुअल एक्सरसाइज लिख के खत्म करो। नेक्स्ट पार्ट मैं एग्जाम के बाद आपको दे दूंगी। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट लेना है या फिर हमारे पास और भी ऑप्शन है। देखो हमने फर्स्ट मैम इलेक्ट्रिसिटी करे। नो मैम, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। एक यस मैम मैम बायोलॉजी इलेक्ट्रिसिटी। करते हैं, केमिस्ट्री मैम, और मैम फिजिक्स पढ़ लिया। इलेक्ट्रिसिटी। मैम इलेक्ट्रिसिटी पे वो दो होते हैं मैम। मैम मैम इलेक्ट्रिसिटी। बायोलॉजी। मैम बायोलॉजी। मैम इलेक्ट्रिसिटी। मैम केमिस्ट्री। यस बेटा। यस मैम केमिस्ट्री। यस मैम। ओके, अब मैं बोलूं अगर आपने बोल लिया हो तो। यस मैम। देखो हमने 1 to 6 चैप्टर खत्म, एक्चुअली हमने 1 to 7 चैप्टर्स खत्म किए, राइट। 1 to 7 हमारे खत्म हो चुके हैं, और एक खत्म यहाँ पे हुआ है 13 and 17। 13 and 17 मैम। ओशन एंड टाइम एंड फॉरेस्ट, राइट। तो हमने ऑलमोस्ट 17 यानी कौन सा है, फॉरेस्ट एनवायरमेंटल साइंस है, फिजिक्स खत्म किया। ये हमारा फिजिक्स है। जस्ट अ सेकंड, गिव मी अ मोमेंट, आई एम गोइंग टू शेयर इट हियर। फिर हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट ये बायोलॉजी खत्म किया है, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर ये केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री फिजिक्स ज्यादा है, बायोलॉजी भी अच्छा खासा है। तो हम हमारे पास जो अभी बचे हुए चैप्टर्स है उसमें वेस्ट वाटर एनवायरमेंटल है, फिर लाइट है। ठीक है, हम रिप्रोडक्शन या इलेक्ट्रिक करंट में से कोई एक लेंगे, फाइन। बट वो मैं डिसाइड करूंगी कौन सा लेना है, कोई चिल्लाना मत। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का रेशियो हम चेक करके ही लेंगे। ओके, जो सबसे ज्यादा हुआ है वो नहीं लेंगे, दूसरा ले लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट या रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में से। फाइन बेटा। ओके मैम। ओके मैम। ठीक है, आज पूरा बाकी का लिख लो बेटा। ओके, और अगर कोई डाउट हो तो नेक्स्ट सेशन में वो पॉइंट आउट करके रखना। फाइन। ओके मैम। चलो बाय बेटा, टेक केयर। बाय बाय मैम। बाय मैम।